phases are required there? What are the phases involved there? Requirement analysis, designing, coding, testing. Okay, then maintenance, means any implementation maintenance. Okay. Okay, sorry. So here RFP. Okay, request fair proposal. So we'll give client. Okay, then on that one, the company or vendor will create a proposal, then sign off work or sign off statement, then kick off the meeting. So that's identify the project manager. Then project manager create a documentation. Okay, so कैसे वर्क करना है, क्या करना है, पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करेगा, देन उसमें बीआरएस डॉक्यूमेंट बनेगा और बीआरएस के बेस अकॉर्डिंग टू द बीआरएस देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनेगा. Okay, after completion of this document, the development team will start working solution architecture. They develop the architecture for the design, database designing, UI designing, UML designing. Okay, so then after that, the coder will developer start working on the coding. Okay, developer also do the some documentation purpose. Then code review and unit level testing will be done. Okay, after that, the the levels of the testing. That is what unit level testing, integration, and system testing. These are the very important levels. Okay. So here developer and tester also involved. Okay, so the integration testing increases. Okay, they also do the integration testing, incremental integration, decremental integration. Okay, after that a system testing, that is end-to-end system, entire system we are going to check. Okay, that is system testing, end-to-end testing. Okay, everything we are going to check here: usability, compatibility, GUI testing. Okay, system testing. Then user acceptance testing, that is the end stage. Okay, last stage user acceptance. Okay, means एंट्री एंट करके एज ए एंड यूजर की तरह वर्क करके चेक करेंगे. Then production and implementation is required. Okay, then after the maintenance. So before that one, that perform what testing planning. Okay, the test list, test manager design what test lead, then test lead create a test plan. Okay, and then write the test scenario, test cases, then perform according to execution of the test cases means performing the testings. Okay, so here the request for the proposal RFP, this is first step. Okay, requirement analysis. Client will distribute the RFP to the vendor, software company को देगा. Company is respond their proposal. Okay, so company उसको response करेगा और एक document proposal देगा vendor को, sorry customer को. Okay, ये customer है, इसको कुछ बनाना है, एक web application something, ई कॉमर्स साइट. तो ये कंपनी के पास जाएंगा, उनको बताएंगा, रिक्वेस्ट करेगा आरएफपी. ओके, बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, वैसा वैसा चाहिए. तो कंपनी जो है उसको एक प्रपोजल देगा जिसमें कॉस्ट, शेड्यूल, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होंगे, जो टेक्निकल सॉल्यूशन, रिसोर्सेज, कॉस्ट जो भी है उसकी वैल्यू पूरा बता देगा. फिर अगर इसमें जो भी है निगोशिएशन हो जाएगा और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, सो द इफ द क्लाइंट्स लाइक दिस प्रपोजल. ओके, अगर जो क्लाइंट को है, जो अगर प्रपोजल है, क्लाइंट क्लाइंट या कस्टमर को हमारा प्रपोजल जो है वो अच्छा लग गया कंपनी का, सो तो दे विल साइन द स्टेटमेंट ऑफ द वर्क. ओके, दैट इज़ वन ऑफ द एमओयू. तो एक ऑफिशियल वर्क होता है, इसको बोलते हैं एसओडब्ल्यू. ओके, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, साइन दैट स्टेटमेंट ऑफ वर्क. जैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया अभी दोनों के बीच में प्रपोजल. सो उनको वो एप्लीकेशन सिस्टम बना के देना है विद इन द टाइम पीरियड लाइक दिस वे. ओके, और उसका कॉस्ट इतना है, तो वो कैसे कैसे फीस पेमेंट करेंगे उसके ऊपर लिख करेंगे. अभी हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया. अब प्रोजेक्ट आने के बाद कंपनी के पास वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि कौन इसको वर्क करेगा. ओके, इसके ऊपर कौन वर्क करेगा, एक पर्सन वो डिसाइड करेगा. सो क्लाइंट विल कंडक्ट द किक ऑफ मीटिंग विद द वेंडर्स एंड एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशन. सो इसमें क्लाइंट भी इन्वॉल्व रहेगा. अभी जितने भी जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनते रहेगा, होते रहेगा, उसमें भी क्लाइंट इन्वॉल्व होते रहेगा हर मीटिंग में. तो क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि कौन ऐसा पर्सन है कि जो मेरा प्रोजेक्ट हैंडल करेगा. बराबर है. सो काइल, सो द किक ऑफ मीटिंग एंड द वेंडर्स एंड एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशन. सो हियर द क्लाइंट जो है आपके पूरे एक्सपेक्टेशन बताएगा. सो द पीएमपी, दैट इज व्हाट वंस द प्रोजेक्ट मैनेजर गॉट आइडेंटिफाइड देन ही विल और शी प्रिपेयर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. ओके, सो यहाँ से हम पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज जो भी हायरिंग होंगी, जो भी होगा, सो आपको पता होगा कि पहले टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद और मैनेजर राउंड होता है, उसके बाद एक क्लाइंट राउंड होता है एट द लास्ट. ठीक है, एक क्लाइंट राउंड, सॉरी क्लाइंट राउंड होता है एक, और वो कोई कंपनी में होता है और कोई कंपनी में नहीं होता है, दैट इज डिपेंड. ओके, बट ये जो टेक्निकल वन राउंड है, ओके, टेक्निकल वन एंड टेक्निकल टू, ये कंपलसरी होते हैं. ठीक है, सो टेक्निकल वन राउंड में पूछा जाता है टेक्निकल स्किल, और टेक्निकल टू राउंड मतलब होता है मैनेजर राउंड.
ओके। और कोई कोई कंपनी में मैनेजर राउंड नहीं होता है तो डायरेक्ट क्लाइंट राउंड होता है। ओके, कोई कोई कंपनी ये सब पूरा होता है, टेक्निकल वन, टेक्निकल मतलब मैनेजर राउंड एंड क्लाइंट राउंड एंड देन एचआर। ओके, ओके, ऐसे राउंड होते हैं। कोई कोई कंपनी में क्लाइंट राउंड नहीं होता है फ्रेशर वालों के लिए, ठीक है, डायरेक्टली हम टेक्निकल वन और मैनेजर राउंड हो जाता है और एचआर हो जाता है, ठीक है। सो जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से फिर उनको प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। जब प्रोजेक्ट असाइन करते हैं ना उस टाइम पे फिर क्लाइंट राउंड होता है। और वो जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे आपने टीसीएस में लग गए अभी या कोई कंपनी में लग गए हो, ओके, सो 2 महीने से आपके पास कुछ प्रोजेक्ट नहीं आया है, एज ए फ्रेशर लगे, तो जैसे आपके पास प्रोजेक्ट आ जाएगा तो उस टाइम पे कैसा कि क्लाइंट राउंड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, सो अभी मान लो कि क्लाइंट राउंड हो गया और क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो दूसरे क्लाइंट का राउंड हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो क्लाइंट उतना कुछ टेक्निकल पूछते नहीं, क्योंकि बहुत स्मॉल टेक्निकल चीज़ें पूछते हैं। उनको सिर्फ चेक करना है कि मेरे प्रोजेक्ट पे काम करने वाला पर्सन एबल है कि नहीं, कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं, वर्क कर सकता है कि नहीं, वो चेक करना रहता है। क्योंकि उस कंपनी में जब आप लगे हो तो ये पूरे टेक्निकल राउंड क्लियर होने के बाद ही आए हो, तो ये क्लाइंट को पता रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। ओके, लेकिन क्लाइंट राउंड ऐसे एक्सपेक्टेशन देखने के लिए थोड़े बहुत बेसिक बेसिक ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी, है ना, तो ये क्लाइंट रन होता है, ठीक है। तो फिर इसी में जैसे ये क्लाइंट ने पहले डिस्कस किया कि मेरे प्रोजेक्ट को हैंडल कौन करेगा, सो वी गोइंग टू आइडेंटिफाइड व्हाट, प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, सो हियर क्लाइंट राउंड में क्लाइंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कि मेरे प्रोजेक्ट को कौन लीड करेगा। So when the project manager got then identified, then he will prepare the project management plan. अब यहाँ से प्रोजेक्ट का वर्क करना चालू हो गया। सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज द हेड पर्सन, ओके, एंड विद द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट हमेशा वहाँ पे इन्वॉल्व होते रहेगा, ठीक है। सो क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, कौन बना रहा है मुझे तो पता होना चाहिए ना कि वो कैसे बना है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरा वर्क रखूंगा। ओके, सो देन दे स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हो गया, PMP documentation. Then that is a covers the BRS and SRS. So business analyst, okay, understanding all the requirement, that will be the high level meeting with the customer and they will release the business requirement and specification, ठीक है। तो जैसे उनको डिटेल्स में फिर वो बिजनेस रिक्वायरमेंट देंगे तो डिटेल्स में BRS फॉर्म, BRS डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। सो BRS हाई लेवल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी क्लाइंट को कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, ब्रीफ में रहेगा यहाँ पे डिटेल में। देन अकॉर्डिंग टू द BRS, ओके, द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वी आर गोइंग टू डिजाइन। ओके, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ही करेंगे जिनको डोमेन में नॉलेज है। सो पर्सन शुड बी द डोमेन एक्सपर्ट और फंक्शनल एक्सपर्ट हु दैट वी विल बी एलिजिबल टू कन्वर्ट द BRS डॉक्यूमेंट इनटू SRS। अभी यहाँ से BRS डॉक्यूमेंट जो है बिजनेस एनालिस्ट तैयार करेगा, तो उसमें कैसे कस्टमर की ईच एंड एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल रिक्वायरमेंट रहेंगी, वही रिक्वायरमेंट को उसको डिजाइनिंग में कवर करना है, मतलब सॉफ्टवेयर SRS में कवर करना है। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये सब डेवलपमेंट टीम पे वर्क होता है, ठीक है। सो जैसे SRS बन गया है तो डेवलपमेंट टीम वर्क करना चालू कर दी है। ओके, सो बेस्ड ऑन व्हाट, अप्रूवल ऑफ द SRS सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, अब ये भी साइन अप होता है, ठीक है। साइन अप होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन जैसे साइन अप होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर की साइन लेना पड़ेगा। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, साइन मतलब अप्रूवल, एंड आल्सो द क्लाइंट इफ द क्लाइंट इज नीडेड, ओके, जब क्लाइंट की जरूरत रहेगी वो भी अप्रूवल लेते हैं। सो जैसे अप्रूवल हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर से, देन टेक्निकल टीम विल स्टार्ट। सो हियर इज द टेक्निकल लीड, ओके। So based on the approval of the SRS software architecture, okay, so software architecture or technical will design the model of the project. That is what blueprint, you can say the prototype. ओके, ब्लूप्रिंट मतलब हमारी एप्लीकेशन कैसी वर्क करेंगे, दैट इज अ टेक्निकल लीड, मीन सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, है ना। सो ही विल डिजाइन द एंटायर आर्किटेक्चर दैट कंसिस्ट अपॉन द डेटाबेस डिजाइनिंग, यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, ऑल द UML डायग्राम। ओके, सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और टेक्निकल जो लीड है वो वर्क करेगा, देन आल्सो दैट रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ द डिजाइन, अगेन वी विल टेक द रिव्यूअल फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके, और क्लाइंट से, ठीक है। जो भी डिज़ाइन बनाए वो सब कुछ ठीक है, बराबर है, तो दैट इज टेक द अप्रूवल फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड क्लाइंट। ओके, सो अपने पास तो रहते हैं वो टेस्ट प्लान और टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, ओके, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हमारे टेस्ट के जो हमारे सीनियर रहते हैं, टेस्ट लीड रहते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे हमारे लिए उधर ध्यान देखना ज़रूरी है। Okay, now the QA and testing team. Okay, so here is what, test manager. Okay, so project manager, and here is the test manager. Okay, so the last class I have also explained that one. QA manager means a test manager. Here is also the manager.
Okay, here development team having the solution architecture or technical lead. Okay, that comes under entire everything. Okay, that documentation everything he'll do. Then here is a QA manager. Then QA manager के नीचे आते हैं test lead. Okay, lead test के lead. Okay, then test lead is for to design this documentation. Okay, now see here the documentation for the testing. So the test manager of the test lead. Okay, assigned by the टीम. ओके, जो भी हम टेस्ट मैनेजर. ओके, सो द टेस्ट मैनेजर जो है वो टेस्ट लीड असाइन करता है. ठीक है, सो टेस्ट मैनेजर ऑफ द टेस्ट लीड असाइन बाय द टेस्ट मैनेजर दैट शैल स्टडी द अप्रूवल ऑफ द एसआरएस एंड प्रिपेयर द टेस्ट प्लान फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कौन बनाता है? प्रोजेक्ट मैनेजर. और टेस्ट प्लान कौन बनाता है? टेस्ट लीड. ओके, अब इसको कौन अपॉइंट करता है? टेस्ट मैनेजर. ओके, सो हमारे टेस्टिंग टीम का बॉस कौन रहता है? मैनेजर. ओके, टेस्ट मैनेजर. ठीक है, टेस्ट मैनेजर के नीचे टेस्ट लीड, टेस्ट लीड के नीचे सीनियर टेस्टर और जूनियर टेस्टर. ठीक है, सो द टेस्ट मैनेजर test lead will assign. Okay, that is assigned by the team test manager. Okay, test lead will responsible for creating the test plan. अब एक टेस्ट प्लान क्या है? तो इस टेस्ट प्लान के बेसिस पे ही हमको टेस्ट करनी पड़ती है एंटायर एप्लीकेशन. ठीक है, हमको यही प्लान रेफर करना है. कौन सा डॉक्यूमेंट? टेस्ट प्लान. ओके, टेस्ट प्लान. टेस्ट प्लान में क्या होती है? स्टडी होती है कि हम एप्लीकेशन को कैसे कैसे स्टडी करेंगे, सॉरी टेस्ट करेंगे. उसमें वेरियस फंक्शनल टेस्टिंग कैसे करेंगे, नॉन फंक्शनल कैसे करेंगे, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे रहेंगी, मैनुअल और ऑटोमेशन, टूल्स कौन से यूज़ करेंगे टेस्ट के लिए, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्या रहेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, सस्पेंशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिज्यूम क्राइटेरिया क्या रहेगा. ये सब कुछ डिज़ाइन कौन करता है? टेस्ट लीड करता है. ओके, और उसमें नंबर ऑफ टेस्ट सिनारियोज, देन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग, एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंटेशन. ओके, सो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ अवेलेबल रहता है. दैट इज क्रिएटेड बाय द टेस्ट लीड. देन रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ द टेस्ट प्लान. सो ये हमको अप्रूवल लेना पड़ता है मैनेजर से. ओके, सो टेस्ट प्लान का अप्रूवल है किसने क्रिएट किया? टेस्ट लीड ने. टेक द अप्रूवल ऑफ मैनेजर, टेस्ट मैनेजर. ओके, सो देन बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ द एसआरएस डिजाइन, देन जैसे अभी ये जो मैनेजर है, टेस्ट मैनेजर, वो चेक करेगा कि जो एसआरएस डॉक्यूमेंट आया है अप्रूवल होके, डिजाइन डॉक्यूमेंट. सो टेस्ट इंजीनियर आल्सो गोइंग टू आइडेंटिफाई देयर रिक्वायर्ड टेस्ट सिनेरियो फॉर द प्रोजेक्ट. तो फिर यहाँ से वर्क करना चालू हो गया सिनेरियोस निकालने के लिए. ओके, सो यहाँ पे टेस्ट प्लान डिजाइन हो चुका है. देन टेस्ट सिनेरियो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑकर्स. टेस्ट सिनेरियो मतलब क्या होता है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑकर्स. टेस्ट केसेस मतलब होता है कि द वन लाइन टेस्ट, वन लाइन स्टेटमेंट टू चेक द एप्लीकेशंस. ओके, सो इसको हम ब्रीफली देखेंगे बाद में, डोंट वरी. ओके, so then again we need to take the okay, so after the test plan is approval get, we need to start what writing the test the scenario and the test cases. Okay, then identify the scenario based functional requirement specification, then review and approval of the test cases test scenario. तो हमको अप्रूवल लेना पड़ता टेस्ट केसेस का टेस्ट लीड से. ओके, फ्रॉम द टेस्ट लीड. तो जो टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केसेस है वो सीनियर लोग लिखते हैं, ऑल्सो जूनियर भी लोग लिखते हैं, जो भी टेस्टर है वो भी लिखते हैं सिनारियो और टेस्ट केसेस. ओके, दैट इज इन्वॉल्व. टेस्ट लीड मीटिंग में हम इन्वॉल्व होते हैं. ओके, सो नाउ इन द डेवलपमेंट फेज. ओके, सो डेवलपर्स मीन्स अ कोडर नाउ. ओके, अभी डॉक्यूमेंटेशन उधर चालू हो गए, डेवलपमेंट के, टेस्टिंग के भी इधर चालू है. So developer are going to convert the logic specified design document program as per the chosen programming language. They will release the code. अब हमको पता चला कि PMP डॉक्यूमेंट में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, जावा यूज़ करनी है. तो डेवलपर कोडिंग मतलब जो डेवलपर है यहाँ पे, जो कोडर है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइनिंग, जैसे डिज़ाइनिंग है उसके हिसाब से वो कोडिंग लिखना. मतलब ऑलरेडी मेंशन है कि आपको जावा में वर्क करना है या PHP में करना है या कोई भी एक टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में वर्क करना है. ओके, सो ऑलरेडी वो डिसाइड रहेगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी में वर्क करना है, तो उसमें भी वो कोड लिखना चालू कर देंगे. ओके, सो द डेवलपमेंट टीम दैट परफॉर्म द देन राइटिंग द कोड. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करिए, देन परफॉर्म द कोड रिव्यूज. कोड लिखने के बाद टेस्ट चेक करो, कोड रिव्यू करे. आल्सो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कोड रिव्यू,
एंड अप्रूव्ड फ्रॉम द यूनिट टेस्टिंग। ओके, यूनिट टेस्टिंग में मतलब सिंगल प्रोग्राम लिखा उसको सिंगल कोड को चेक करके देखो। यूनिट टेस्टिंग इज अप्रूवल डेवलपर देन विल इंटीग्रेट द यूनिट एंड रिलीज द बिल्ड फॉर द टेस्टिंग। ओके, अब यूनिट टेस्टिंग मतलब है कि मैंने एक कोड लिखा, एक छोटा सा एक इसका मॉड्यूल। ओके, दिस इज प्रोग्राम नंबर 1, दूसरे डेवलपर में भी लिखा कोड। ओके, सो पहला डेवलपर उसको उस कोड को टेस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे यूनिट टेस्टिंग। दूसरा डेवलपर जो अपने कोड को टेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ये चार डेवलपर ने कोड लिखे यूनिट। ओके, वन सिंगल प्रोग्राम, सिंगल फंक्शनलिटी। तो इसको हमको क्या करना है, अभी इंटीग्रेट करना है। ओके, इंटीग्रेट करना है। ओके, सो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, उसको बोलेंगे एक बिल्ड। ओके, दिस इज वन बिल्ड। अब मान लीजिए कि इसने एक लिखा कि लॉगिन फंक्शनलिटी का। ओके, यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन करके है। इसने लिखा कि एक 4-5 फील्ड है और उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसने होम पेज का थोड़ा सा डिज़ाइन किया कोड में। ओके, छोटे छोटे कोड लिखे हैं और इसने कुछ लिंक वगैरह जनरेट किए हैं। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, अभी बिल्ड बनाएंगे उसका एक, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो द इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब यहाँ पे हमने बिल्ड बना दिया और ये बिल्ड जो है वो क्यूए में जाएगा अभी। ओके, क्यूए टीम के पास जाएगा। इसको बोलते हैं हम बिल्ड और इसका एक मेंशन रहता है वर्जन। सो इनिशियल वर्जन इज 0.01। ओके, और 01 और एनीथिंग। ओके, v101, दिस इज द वर्जन 1। ये हमारे पास बिल्ड आ गया, फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे और लोकल मशीन में हमारे। ओके, लोकल मशीन में डाउनलोड करने के बाद उसको सेटअप करेंगे, एनवायरमेंटल सेटअप करेंगे उसका। जो भी अगर जावा में है तो फिर हमको जेडीके इंस्टॉल करना है, इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, जो भी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर लगेंगे वो हमको मिलेंगे। ओके, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट भी मिलेगा हमको, कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब इसमें हमने इंस्टॉल करने के बाद उसको हम रन करके देखेंगे। रन करने के बाद हम चेक करेंगे कि बेसिक फंक्शनैलिटी। ओके, सो मतलब हम चेक करेंगे कि इस पे लिंक करने के बाद बिल्ड वेरिफिकेशन करेंगे, इसमें सब लिंक प्रॉपरली इंटर कनेक्टेड है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सब इस पे क्लिक करने के बाद इस फॉर्म पे जा रहा है कि नहीं, इस पे क्लिक करने के बाद इस पे जा रहा है कि नहीं, इस पे क्लिक करने के बाद उस पर जा रहा है कि नहीं। So all these forms are integrated with each other or not. Okay, that is what integration testing. That is what integrated the all units and release the build. Okay, so ये integrate कर लेंगे सबसे पहले before sending the build. Okay, all this integrated or not. So developer is involved there, सीनियर डेवलपर है या कुछ है जिन्होंने कोड लिखा, उसके बाद उसको डिप्लॉय करने के पहले बिल्ड तैयार करने के पहले, क्योंकि क्या होता है कि हर कोड एक एक लिखता है, फिर एक जमा करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है कोड को। क्योंकि हर इंडिविजुअल डेवलपर अब अपना इंडिविजुअल कोड लिखता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल के लिए। ओके, फिर सारे फंक्शनलिटी एक को मर्ज करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे डेवलपर्स, है ना। तो बिल्ड उसके बाद बिल्ड तैयार करने के बाद भेजेंगे टेस्टर को, उसमें भी हम यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे कि ऑल दिस लिंक्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अब यहाँ पे जो डेवलपर ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया है वो है नॉलेज ऑफ कोड, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं टेस्टर, so based on the functionality without knowledge of code. Okay, so like this way, then that is perform what, integration testing. Okay, integration testing is approval, then from then perform what, system testing. अब integration perform हो गया है, integration means all these links are working properly, integrated properly or not. Okay, then perform the system testing. अब system testing मतलब end to end testing. So entire application is going to test, पूरी application, ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी देखो। ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है, पूरे यूजेबिलिटी। सो एंड टू एंड टेस्टिंग पूरा वो चेक करेंगे। ठीक है, सो सिस्टम टेस्टिंग हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड है कि नहीं, कोई प्लेटफॉर्म पे भी रन हो रही कि नहीं, सभी इसमें। दिस इज नोन एज परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग। ओके, so that is what the developer also do and tester also do. If you are giving the tester, so we'll test the all the environment. Okay, using that system testing. Okay, then perform the retesting and regression testing. So this what we are going to see, what is the regression testing and what is the uh, retesting. Okay, so the perform the system testing means that we are going to perform their end-to-end systems. Okay, compatibility testing, usability testing, ओके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी चेक किया जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करेंगे। ओके, दिस ऑल आर द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, दैट इज व्हाट कम्स अंडर द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, कंपेटिबिलिटी, यूजेबिलिटी।
Okay, so here the regression testing and retesting. So जैसे मुझे कुछ एरर मिल गया, बग मिल गया और उसको रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद वो डेवलपर को आसान होगा, डेवलपर चेक करेगा और ये तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। डेवलपर ने एक्सेप्ट किया बग तो उस पे वो वर्क करेगा। तो हमको चेक करना है कि वो जो बग है हमने जो रिपोर्ट किया है वो फिक्स हुआ कि नहीं, उसको वही सेम टेस्ट केस को री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रीटेस्टिंग। बग आया, बग फिक्स किया, सॉरी बग आया हमने असाइन किया, रिपोर्ट किया, रेज किया हमने बग, डेवलपर को असाइन हो गया, डेवलपर ने एक्सेप्ट कर लिया, डेवलपर ने वर्क किया, फिर हम उसको चेक करें। सो एग्जीक्यूशन ऑफ द री एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम टेस्ट केस। ओके, री एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम टेस्ट केस, देन यू कैन से दैट इज रीटेस्टिंग। ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स, सो अभी ये जो बग आया है तो इसका जो इम्पैक्ट है और टेस्ट होने के बाद ओके वो दूसरे फंक्शनलिटी पे ऊपर इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए, दैट इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, रीटेस्टिंग मतलब हम चेक करते हैं वेदर द बग इज फिक्स और नॉट, and re-executing the same test case to check whether the bug is fixed or not. Okay, re-execution of the same test case to check whether the bug is fixed or not. Regression testing, that is we are going to check whether the bug is fixed or not and it should not be impact on the existing functionality. ठीक है, existing functionality पे उस पर impact नहीं होना चाहिए। So system testing में end to end testing है तो उसमें entire application is going to be test. Okay, compatibility, operating system compatibility, performance testing, security testing, usability, user interface testing सब टेस्ट हो जाएगा। ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी हो जाएंगे, सो ब्राउजर compatibility एवरीथिंग। ओके, सो हियर द डेवलपमेंट डेवलपर्स आर गोइंग टू फिक्स द डिफेक्ट। हाँ, ये जो पॉइंट है ना टेस्टिंग पे जो वर्ड्स आ रहे हैं ना उसके ऊपर हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे, डिटेल में टॉपिक है। सिस्टम टेस्टिंग में एंड टू एंड सिस्टम, एंड टू एंड टेस्टिंग कहते हैं इसको। इसमें कंपेटिबिलिटी हम चेक करेंगे, कंपेटिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म, यूजेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग आता है उसमें, सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है। ओके, तो कुछ डेवलपर कुछ टेस्टर भी वर्क करेंगे उसमें, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, सो दीज आर द नॉन फंक्शनल टाइप्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ओके, सो डेवलपर आर देयर ओके टू कन्वर्ट दैट डॉक्यूमेंटेशन इनटू द कोड। ठीक है, देन कोड रिव्यू एंड यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, ये लेवल्स है। तो इसमें ऐसी टाइप की सबसे पहले जैसे डेवलप होता है प्रोजेक्ट तो इस लेवल से इस लेवल में जाके टेस्टिंग होती है। ओके, यूनिट टेस्टिंग, ओके, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, इस लेवल में ही टेस्टिंग होती है जैसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3 एंड दिस इज 4। ओके, 1 2 3 4 ऐसे, एंड देन वी गो फॉर द अदर टेस्टिंग्स। ठीक है, देन so developer are going to fix the defect reported by the testing team। अब देखो हमने यहाँ पे टेस्टिंग किया और हमको री टेस्टिंग भी किया, रिग्रेशन भी किया और हमको यहाँ पे मिल गया बग। ठीक है, डिफेक्ट आ गए तो यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास कुछ डिफेक्ट आ गए हैं। ओके, सो डिफेक्ट आने के बाद और चेक करेंगे और डिफेक्ट डेवलपर जो है उसके ऊपर वर्क करेंगे और अगर हमको बिल्ड मिलेगा और उसके ऊपर हम चेक करेंगे, दैट इज नोन एज रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग आल्सो। सो हियर, so developer are going to fix the defects reported by the testing team। ओके, अगेन डेवलपर व्हाट टू डू, सो जैसे डेवलपर ने वर्क किया है फिर हमने टेस्टिंग की है, उन्होंने यूनिट टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, सिस्टम टेस्टिंग भी किया, हम भी इन्वॉल्व हो गए सिस्टम टेस्टिंग में, फिर हम भी वही किया जिन्होंने वो किया।
ओके, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग चेक किया हमने, कंपेटिबिलिटी किया, यूजेबिलिटी किया, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग किया, दैट इज कम्स अंडर द सिस्टम टेस्टिंग। ओके, ये सब सिस्टम टेस्टिंग के अंडर में आते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग टेस्टर भी करता है। ओके, टेस्टर भी इन्वॉल्व होता है सिस्टम टेस्टिंग में, क्योंकि हम कंपेटिबिलिटी भी चेक करते हैं, उसकी यूजेबिलिटी भी चेक करते हैं, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करते हैं हम। ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करते हैं। दैट इज व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग। सो द देन डेवलपर ने जो उसमें कुछ टेस्टर ने कुछ डिफेक्ट लॉग इन कर दिए है। ओके, सो डेवलपर इज गोइंग टू फिक्स दैट डिफेक्ट, दैट इज रिपोर्टेड बाय द टेस्टिंग टीम। Now the QA testing team here, quality assurance, okay, so that once the system testing is approval, okay, अभी हमको system testing में कुछ approval मिल गया। अब system testing में मान लो कि browser compatibility वर्क नहीं कर रहा, Chrome पे वर्क कर रहा है लेकिन Edge पे वर्क नहीं कर रहा है, या Mozilla पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ Google Chrome पे वर्क करना है, that is और browser compatibility issue आ गया, तो that is also comes under the system testing। ठीक है, ये भी इशू कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग में आ गया। ठीक है, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, दैट इज व्हाट ब्राउजर कंपेटिबिलिटी। ओके, सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है ये भी। ठीक है, सो नाउ दिस इज फेल, तो अगेन दिस विल बी रिपोर्टेड बाय द टेस्टर एंड दिस विल बी वर्क। ओके, सो डेवलपर अगेन इट कैन बी वर्क। सो जैसे हमारी सिस्टम टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है। ओके, सिस्टम टेस्टिंग, सो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। सो जैसे हमारे टेस्ट सिस्टम टेस्टिंग होती है, सो दैट इज़ व्हाट कंपेटिबिलिटी, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ अप्रूवल होने के बाद फिर हम यूआई टेस्टिंग पे जाते हैं। ओके, यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, यूएटी, सो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट नेक्स्ट पार्ट। ओके, ओके, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, these are the levels. So once system testing is get approved, then we go for what, user acceptance testing. Okay, so in what happened in the user acceptance testing, so we are going to add जैसे एंड यूजर की तरह हमको वर्क करना है, एंड मतलब फंक्शनल टेस्टिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसमें। ओके, सो वंस यूएटी अप्रूव्ड, देन इट रिलीज द एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन। सो जैसे हमारे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अगर परफॉर्म हो गई और वो परफेक्ट हो गई है, देन दे रिलीज द एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए रेडी है। इसका मतलब जो जियो मार्ट है बीटा वर्जन, जो बीटा वर्जन है जियो मार्ट का, वो प्रोडक्शन के लिए रेडी था और उसको प्रोडक्ट बना दिया, अभी वो डिप्लॉय हो चुका है। ओके, सो देन द प्रोडक्शन इज रेडी, देन परफॉर्म द इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। ओके, अब इंस्टॉलेशन जैसे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, स्टैंड अलोन सिस्टम रहती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ई फाइल, जिसमें हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर फिनिश होता है, तो फिर इंस्टॉल हो जाता है। ओके, सो इट्स परफॉर्म व्हाट, प्रोडक्शन फॉर द इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। अब कैसे कि डायरेक्टली हम कभी डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, तो वो डेवऑप्स इंजीनियर उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, so the once installation testing is approved, then implement a developer software into the customer environment and provide a user training। ओके, अब देखो कि इंस्टॉलेशन, अभी देखो कि उनका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखेंगे नेक्स्ट 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 फिनिश हो रहा है कि नहीं बराबर, और वर्क कर रहा है कि नहीं, और दूसरे सिस्टम में भी वर्क करके देखेंगे। अगर उनका वेब एप्लीकेशन प्रोडक्ट है, तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग इज अप्रूव होने के बाद फिर उसको हम सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे, और वो सर्वर पे प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो उस एनवायरनमेंट पे प्रॉपरली चल रहा है, मतलब कस्टमर एनवायरनमेंट के जो भी है, देन वी कैन प्रोवाइड अ ट्रेनिंग फॉर देम। ओके, सच जैसे मान लीजिए कि मेरी एक एप्लीकेशन, एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन बनाया, आधार कार्ड का पोर्टल बनाया मैंने, कंपनी ने। ओके, तो हम उसको गवर्नमेंट को फिर दे देते ये। ओके, आधार कार्ड का पोर्टल बना दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, फिर गवर्नमेंट में को जो एम्प्लॉय है जो उसको हैंडल करेंगे, उसको हमको क्या देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ओके, जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में, उसको हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फिर ये ट्रेनिंग देने के बाद उनको पता चल गया कि उसको हैंडल कैसे करना है, वर्क कैसे करना है। इनके लिए बैक एंड वाला जो पोर्शन है वो अलग रहता है, फ्रंट एंड वाला पोर्शन अलग रहता है। फ्रंट एंड में कौन आते हैं, जो यूजर्स रहते हैं जिनको आधार कार्ड निकालना है ना, सो पर्सनली वो वर्क करते हैं। लेकिन जो बैक एंड में कैसे प्रोसेस को डेटा हैंडल करना है, फिर जो उनका डेटा आएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, अप्रूवल कैसे देंगे, क्या कैसे दे देंगे, तो इनको यूज़र को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ओके, सो ये एप्लीकेशन को जो यूज़ कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे कुछ मर्चेंट भी, मतलब उनके कुछ ये भी रह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, जो
ये रहते हैं ना, मतलब जिनको हम ऑथराइज मेंबर देते हैं, मेंबर सिस्टम। ओके, उसको क्या बोलते हैं, एक मेंबर सिस्टम देते हैं ना, कि इनको अप्रूवल दे देते हैं कि ये आधार कार्ड सेंटर अप्रूवल है और यहाँ पे आप जाके वर्क कर सकते हैं। तो उनका एक लॉगिन रहती है, उसको कौन सी लॉगिन बोलते हैं, मर्चेंट लॉगिन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, उनकी कौन सी एजेंट लॉगिन। ओके, सो उसको बोलते हैं हम एजेंट। तो हम कुछ एजेंट देते हैं, है ना, एजेंट की भी लॉगिन देते हैं, है ना। तो ये एजेंट लॉगिन पे वर्क करेंगे, जहाँ पे लोग जाएंगे यहाँ पे उस एजेंट के पास, और एजेंट लॉगिन उस पे वो वर्क करेंगे, जो भी आधार कार्ड का काम है वो वर्क करेगा, उस पर डाल देंगे। फिर उसका जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएगा, वो चेक करेगा, देन उसको अप्रूव करेगा। तो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग है वो इनको ट्रेनिंग दी जाएंगी कि हाउ टू हैंडल, कैसे वर्क करेगा, कैसे फ्लो पूरा ये उनको दे देंगे। फिर यहाँ से फिर वो एजेंट को तो पता रहेगा, तो एजेंट जो रहते थे उनको भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है कि कैसे वर्क करना है। वो 5-10 मिनट के जो भी आधे घंटे उनके सेशंस रहते हैं, ठीक है, वो बताएंगे फिर कि हर गांव में ये 4 आधार कार्ड सेंटर दे रहे हैं हम, तो उसको उसको ऑपरेट कैसे करना। फिर उन पे वो जो ऑपरेटर रहते हैं, फिर उनको ऑपरेटर लगा देते हैं, फिर उनको पता चल गया फ्लो कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, फिर और चालू हो गई। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन सब वर्क करते हैं। तो ये दिस एग्जांपल, ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं। देन इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द कस्टमर फॉर एनी प्रॉब्लम इशू हैविंग देयर। ओके, जैसे आधार कार्ड में कुछ इशू आ रहे, फिर कुछ हो रहे, तो फिर वहाँ से हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है वो बोलते हैं कि जो भी जिस कंपनी से वेबसाइट बने हैं, फिर वो प्रॉब्लम वहाँ पे रेज करते, फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना डेवलपर का काम है। ठीक है, ये सब हम वर्क करते हैं इसमें। तो जैसे कोई गवर्नमेंट वेबसाइट को एक ऑनलाइन पोर्टल बना के देना है भैया एग्जामिनेशन का, तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बना के देंगी। सो लाइक दिस वे ऐसे वर्क होता है। ओके, सो दैट्स प्रोवाइड सपोर्ट आल्सो। ओके, सो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थिंग, सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन। यूनिट टेस्टिंग मतलब सिंगल सिंगल प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे डेवलपर, उसी पूरे कोड को इंटीग्रेट कर दिया। ओके, सारे मर्ज कर दिए कोड को, वो बिल्ड बन गया। बिल्ड बनने के बाद यूनिट टेस्टिंग में आ गया। Okay, then it will check the integration testing. Okay, integration sorry, system testing. System testing मतलब end to end testing, so entire application we are going to check. Okay, entire means a compatibility testing, security testing, okay, usability testing, ये सब हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वहाँ पे परफॉर्म हो जाते हैं। ओके, देन वी जस्ट स्टार्ट फॉर द फंक्शनल टेस्टिंग। देखिए, उसको बोलते हैं हम स्मोक टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, वो भी है स्मोक टेस्टिंग। ओके, फिर उसमें कुछ रेज डिफेक्ट आ गए, तो फिर वो डेवलपमेंट टीम वर्क करेंगे उसमें। सभी अगर पूरे डेवलपर सब नो इफ डिफेक्ट है, कुछ भी नहीं, पूरा अभी एप्लीकेशन रेडी हो गया, तो फिर हम क्लाइंट पे कस्टमर के प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट होती है सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होने के बाद फंक्शनल टेस्टिंग करती है, उसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब उसमें क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स डालेंगे, इनपुट डालेंगे और चेक करेंगे, इनपुट डाल के चेक करेंगे, डेटा डाल के चेक करेंगे, है क्या नहीं, उसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, यूजर ने एक्सेप्ट की कि नहीं। तो हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में बीटा आता है और अल्फा अल्फा आता है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अभी इसमें वर्ड आपको कुछ कुछ टेस्टिंग के जो इतने सारे टेस्टिंग 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 देखेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या किधर आ रहा है। व्हाइट बॉक्स में ये डाल दिया, यूनिट टेस्टिंग में वो डाल दिया, इंटीग्रेशन में वो डाल दिया, वही 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 है, थोड़ा कंफ्यूज लगेगा आपको, उतना कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया। देन द मेन दिस इज व्हाट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया, इसका मतलब बिल्ड रेडी हो गया और कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हो गई। हमने क्या लिया, जस्ट ओवरव्यू लिया। ओके, इट्स अ जस्ट ओवरव्यू, दैट्स इट। सबसे पहले हमने टेस्टिंग के बारे में सोचा। टेस्टिंग का मतलब होता है कि लेट अस चेक द वेदर द रिक्वायरमेंट, वी आर गोइंग टू चेक द डेवलप एप्लीकेशन वेदर इट इज वर्किंग एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट। देन हमने टेस्टिंग के टाइप देखे। एक है अल्फा टेस्टिंग, सॉरी सॉरी, कौन से है टेस्टिंग के टाइप, दो टाइप देखे हमने, वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को ही कहते हैं हम स्ट्रक्चरल। ओके, ओपन बॉक्स टेस्टिंग। देन black box testing, that is what functional testing. Okay, सॉरी, फंक्शनल टेस्टिंग ने क्या करते हैं उसको, फंक्शनल टेस्टिंग ही कहते हैं कि क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को।
ब्लैक बॉक्स हाँ फंक्शनल टेस्ट। ओके, सो फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। सो स्ट्रक्चर टेस्टिंग में जो लेवल्स आते हैं यूनिट टेस्टिंग में, ओके, कौन से हैं? यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। इंटीग्रेशन, हाँ, तो यूनिट टेस्टिंग मतलब डेवलपर करता है। हाँ, यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि स्मॉल लाइन ऑफ कोड लिखा, 15-20 लाइन का कोड लिखा एक प्रोग्राम, और उसको डेवलपर ही चेक कर रहा है बिफोर सेंडिंग टू द क्यूए टीम वेदर द दिस कोड इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। इसको बोलते हैं हम यूनिट टेस्टिंग। दूसरे डेवलपर ने भी कोड लिखा, वो भी टेस्ट कर रहा है, वो भी यूनिट टेस्टिंग कर लिया। हु विल डू द यूनिट टेस्टिंग? दोज हु नो द नॉलेज अबाउट कोडिंग, इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड। जो भी इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड पता है, कोडिंग का नॉलेज जिसको है, वो उस टेस्टर को हम कहते हैं कि यूनिट टेस्टर, ओके। तो जनरली दे आर द डेवलपर्स। देन ये सब कोड लिखने के बाद उसको क्या किया? इंटीग्रेट किया, मर्ज किया। फिर डेवलपर ने उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, ठीक है। सारे कोड एक मतलब फ्लो बराबर जा रहा है कि नहीं, वो पूरे कोड एक में पे मर्ज हुआ कि नहीं बराबर, है ना। कोड, ये हर एक डेवलपर अलग अलग कोड लिखेगा ना, फिर उसको मर्ज कर लेंगे, उसको बिल्ड बना देंगे, उसको लेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन ये बिल्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई, ओके। इस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होंगी, लिनक्स होगी। देन ब्राउज़र आ गया, ब्राउज़र में कंपेटिबिलिटी है कि नहीं, हर ब्राउज़र में ओपन हो रही कि नहीं, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग है कि नहीं, यूज़र एक्सेप्टेबल मतलब यूजेबिलिटी मतलब जैसे टैब इन इंडेक्स हो गया, टैब का इंडेक्स यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है। ये वो टेस्ट कर लिया, मतलब ये क्या हो गया? नॉन फंक्शनल। दिस इज नॉट अ फंक्शनल, दिस आर व्हाट? नॉन फंक्शनल, ओके। सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब डेवलपर ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, ओके। और डेवलपर सिस्टम टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द कोडिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेस्टर भी आ गए अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। अब टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करेगा, कैसे करेगा टेस्टर? जस्ट वो लिंक पे क्लिक करेगा, जितने भी वो यहाँ पे लिंक है 4-5, जैसे लॉगिन पे क्लिक कर, साइन अप का लिंक है, साइन अप पे क्लिक होने के बाद साइन अप का फॉर्म ओपन होना चाहिए, ठीक है। और रजिस्टर में पे क्लिक करने पर मतलब रजिस्टर का क्लिक होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी नाम की अगर लिंक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी ओपन होनी चाहिए। पूरे लिंक्स वर्क कर रहे कि नहीं, वो बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वॉइस ब्रेक हो रही थी आप। कौन सा? हेलो। वॉइस ब्रेक हो रही थी, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का बता रहे थे ना आप, वॉइस ब्रेक हो रही ओके, सो डेवलपर इज डूइंग द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे डेवलपर ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया है, लेकिन विद द नॉलेज ऑफ कोड किया है। फिर बिल्ड मिल गया है, तो टेस्टर भी यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा, ठीक है। टेस्टर भी इंटीग्रेशन टेस्ट करेगा, लेकिन कैसे टेस्ट करेंगे? विदाउट नॉलेज ऑफ कोड। तो वो क्या करेंगे, जितने भी लिंक्स है वहाँ पे बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग है, जितने भी लिंक्स है, जैसे साइन अप पे क्लिक होने के बाद साइन अप का पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी नाम की लिंक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज ओपन होना चाहिए। दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑल दिस मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड प्रॉपरली और नॉट। देन गो फॉर द सिस्टम टेस्टिंग, ओके। सिस्टम टेस्टिंग में भी डेवलपर प्लस टेस्टर दोनों भी इन्वॉल्व होंगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है क्या, डिफरेंट ब्राउजर पे, ओके। सो ऑल्सो वी आर गोइंग टू वर्क द सिस्टम टेस्टिंग इज अप्रूवल, देन वी गो फॉर द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहाँ पे हो गया फंक्शनल टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे और टेस्ट करेंगे। इनपुट डालने के बाद यूज़र क्या क्या फॉर्म, मतलब फॉर्म है, फॉर्म ओपन हो गया तो फॉर्म पे डेटा डालेंगे और चेक करेंगे, उसको बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो बहुत सारे टाइप्स की टेस्टिंग है, और वो पूरी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कंफर्म हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बिल्ड को रिलीज करेंगे, ठीक है। देन हम वो जो बिल्ड आ गया हमारा प्रोडक्ट है, उसको हम कंबाइन करेंगे, उसके एग्जीक्यूशन इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट के एनवायरनमेंट में, ओके। सो जैसे क्लाइंट पे इन्वायरमेंट में हो गया तो उसको वर्क करना चालू हो गया, ठीक है। ऐसी एक सिंपल प्रोसेस है। अब ये हो गया इंटायर प्रोसेस, 10-15 मिनट में हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। एसडीएलसी में क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। फिर हम टेस्ट कहाँ पे आते हैं, तो हम आते हैं टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान के रिगार्डिंग हम टेस्टिंग टीम कैसी वर्क करती है, बेस्ड ऑन द टेस्ट प्लान। हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है टेस्टिंग टीम का, वो होता है टेस्ट प्लान,
तो टेस्ट प्लान में हमारे पास जैसे है उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जैसा फ्लो है टेस्टिंग का उसके हिसाब से हम टेस्टिंग का फ्लो करते हैं। तो टेस्ट का डॉक्यूमेंट जो है वो पीएमपी के डॉक्यूमेंट से बनता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके पास जो एसआरएस है बीआरएस है उसके हिसाब से फिर बनता है वो, एसआरएस के हिसाब से बनता है। हाँ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है ना इसके हिसाब से बनता है वो टेस्ट प्लान। ओके, इसके हिसाब से टेस्ट प्लान, क्योंकि जो टेस्ट लीड रहता है वो चेक करेगा सब डॉक्यूमेंटेशन जो डेवलपर ने एसआरएस वगैरह क्रिएट उसके हिसाब से। तो एफआरएस वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, सो ऐसे हम स्टेजेस, दीज आर द स्टेजेस इन द टेस्टिंग। अब इस स्टेजेस के अंदर जाके हमको देखना है। ओके, उसके अंदर स्टडी करना है। अभी आपको ये हो गया ओवरव्यूज, और यहाँ से हमारा एक्चुअल मैनुअल टेस्टिंग का जो कोर्स है वो यहाँ से चालू होता है। दिस इज फॉर द बेसिक्स। ओके, ये सब है हमारा बेसिक। सो कोई भी एज अ टेस्टर है तो ये सब उनको पता होना जरूरी है एज अ टेस्टर, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। ओके, एक्सपीरियंस रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता रहेगा, मतलब ये पीपीटी या गूगल से देख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो भी हो रहा है वो अपने आंखों से दिखता है, प्रोसेस कैसे हो रही है ना। एक्सपीरियंस मैंने को कुछ ज़रूरत नहीं, पता ही रहता कि कैसे बन रहा है। फ्रेशर को थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जो आपको न्यू है, अगर आप न्यू है तो आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए बस। क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना पूछेंगे, व्हाट इज एच डी एल सी, व्हाट आर द फेजेस इन्वॉल्व इन द एच डी एल सी। ओके, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सिर्फ टेस्ट प्लान के ऊपर क्वेश्चन होता है, वो भी 4 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहा तो होता है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए टेस्ट प्लान में होता क्या है, बस इतना ही। टेस्ट प्लान टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट है, दैट्स इट। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन होते हैं एफआरएस एफआरडी, ये पता होना चाहिए। और प्रपोजल कैसे मिलता है, प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको इंटरव्यू में, प्रोजेक्ट कैसे मिलता है क्या होता है, क्योंकि आपने एसडीएल से एक्सप्लेन कर दिया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, दो दो लाइन में आपने हर एक फेज को एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर वो नहीं पूछेंगे। फिर टेस्टिंग प्रोसेस में मेन लेवल्स कौन से होते हैं ये आपको पूछेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स इन द यूनिट टेस्टिंग। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आते हैं लेवल्स। तो फिर जैसे लास्ट में जो यूज होती है कौन से, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जैसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है देन दैट इज रेडी फॉर द बिल्ड। ओके, देन इट इज रेडी टू डिप्लॉय, जहाँ पे देन इसके एग्जीक्यूशन फाइल है, EXE फाइल तैयार करेंगे और रेडी हो जाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर वो क्लाइंट के एनवायरनमेंट में करेंगे, डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे। ओके, सो दे कैन एक्सेस दैट वन। फिर उसमें कुछ इशू आए तो और इशू रेज करेंगे। जैसे एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, इसका पोर्टल बना दिया आधार कार्ड का, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस लो हो रहा है, वैसे जो भी आएंगे तो रिपोर्ट करेंगे टेस्टर डेवलपर को। देखिए वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आएंगे प्रोडक्ट ओनर, उसको पता चलेगा क्लाइंट को ये कस्टमर को ये इशू है, वो बताएंगे और अपनी मीटिंग चलेंगे उसमें, फिर टेस्टर उस पर वर्क करेंगे और डेवलपर भी उस पर वर्क करेंगे। ओके, सो देन हियर the testing plan also consists of the testing strategy, no, sorry, methodology. Okay, so here having the two type of this methodology. Okay, manual testing and automation testing. Okay, so now we are studying here the manual testing, how we are going to perform the manual testing. So what is the manual testing? Okay, so अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी जॉब ढूंढ रहे हो तो भी आपको मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट 100% क्लियर चाहिए। कितने? 100%। ओके, परफेक्ट नॉलेज चाहिए आपको मैनुअल टेस्टिंग का। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड और गो फॉर द ऑटोमेशन। अब मैनुअल टेस्टिंग का अच्छा नॉलेज आ गया और आपको हाइक चाहिए, ज़्यादा पैसा सैलरी चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द ऑटोमेशन। ओके, सो ऐसे धीरे 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 न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करके आप अपने गेनिंग कर सकते हो इनकम में। तो मैनुअल टेस्टिंग इज व्हाट? ओके, जो टीम रहती है मैनुअल टेस्टिंग की टीम रहती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग की भी टीम रहती है। अब मैनुअल टेस्टिंग, दैट टेस्टर व्हाट दे मैन्युअली डू, everything process will do the manually। okay, to execute a test case without using any automation tool, कुछ भी ऑटोमेशन टूल का यूज़ नहीं करना है हमको, और मैनुअली हमको वर्क करना है। सो मैनुअल टेस्टिंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल टेस्टिंग टाइम एंड हेल्प्स टू फाइंड द बग्स इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो जो मैनुअल टेस्टिंग है वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग भी उनको करना है, ऑटोमेशन इंजीनियर को, ऑटोमेशन टेस्टिंग वालों को, तो भी उनको मैनुअल टेस्टिंग ने जो निकाला है टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनारियो, जो हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं और उसके टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केसेस निकाल रहे हैं, वही हमारे डॉक्यूमेंट पे वो वर्क करेगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग वाला। ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग इंजीनियर। सो बिकॉज विदाउट डूइंग द मैनुअल वी कांट गो फॉर द ऑटोमेशन। ठीक है। अब मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग में कब जाते हैं? एज अ पार्ट ऑफ द रिग्रेशन टेस्टिंग। जैसे वही हमको टेस्ट केसेस है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, हमको रिपीटेशन लूप्स आ रहे हैं, रिपीटेशन ही वर्क करना है 10 टाइम, मतलब 10 यूज़र का डेटा एट ए टाइम चेक करके, रन करके चेक करना है, तो हमको सेम टेस्ट केस हमको 10-12 करना पड़ेगा, है क्या नहीं? सो जैसे मान लीजिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन का पेज चेक करना है। ओके, सो सी हियर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द रजिस्टर्ड, इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे टेस्ट डेटा मिल जाता है। ओके, तो अभी मुझे 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके देखना है। ओके, 10 लोगों का, तो मुझे कितना बार रन करना पड़ेगा उसको? 10 टाइम्स, मतलब मैन्युअली मैन्युअली मुझे 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, बराबर है ना? तो मेरा टाइम जा रहा है ना 10 बार लिखने, फिर यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद और दूसरा टेस्ट डेटा लेंगे, उसमें चेक करेंगे, तो 10 टाइम। तो ये जो है ये 10 टाइम हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमेशन जो इंजीनियर, ऑटोमेशन टेस्टर जो है, उसमें कोड लिखेगा, और एट ए टाइम वो कोड लिखने के बाद वहाँ पे 10 ही डेटा जो है 10 पर्सन का, या फिर 10 एम्प्लॉय, या जो भी है 10 पर्सन का डेटा एट ए टाइम वो पे कर दे देंगे। तो एट ए टाइम विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1 मिनट में वो पूरा का पूरा डेटा जो है, पूरे डेटा रन कर देंगे। ओके, सो मीन्स क्या हो गया कि सेम टेस्ट केस जो है हमने बार बार रिपीट किए 10 टाइम, लेकिन वो कैसा कि ऑटोमेट हो गया, ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। पहला यूज़र क्रिएट होने के बाद दूसरा डाटा जा रहा, तीसरा जा रहा ऑटोमेटिक, चौथा जा रहा, पांचवा जा रहा, ऐसे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो गया। तो वही चीज़ हमको मैन्युअली करनी पड़ती, तो हमको क्या जा रहा है, यहाँ पे टाइम जा रहा है। ठीक है, मैन्युअली टेस्टिंग, जैसे मैन्युअली में लिख रहा, मैन्युअली ये चेक करके देख रहा हूँ। ओके, बट बिफोर द ऑटोमेशन द मैनुअल इज मस्ट रिक्वायर्ड। ओके, सो मैन्युअली वी हैव टू परफॉर्म द ऑल द टेस्ट केसेस। मैन्युअली आपको यूज़र नेम में वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, क्लिक बटन पे क्लिक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बटन वर्क कर रही कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, तो सबसे पहले मैं जैसे मैं अभी यहाँ पे यूजेबिलिटी टेस्टिंग कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, और मैंने टैब के बटन देख रहा हूँ। ठीक है, मैं टैब के बटन प्रेस करके देख रहा हूँ, देखो टैब 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रहा है, सब टैब बराबर हो रहा है, वर्क हो रहा है टैब। ओके, ये देखो टैब जो है, ये है सिस्टम टेस्टिंग और यूजेबिलिटी, सॉरी, सिस्टम टेस्टिंग बोल सकते हैं उसको, या फिर यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ओके, यूज़र देखो सब क्लिक बराबर जा रहे हैं सब इस पे टैब। ओके, टैबिंग इंडेक्स। ओके, टैबिंग यूजेबिलिटी, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं। ओके, वेदर इट इज़ यूज़र फ्रेंडली और नॉट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जब चेक कर रहा हूँ कि जीयूआई टेस्टिंग, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये बराबर है क्या नहीं, है ना, यहाँ से यहाँ तक है। इसके जितने भी लाइन, ये विड्थ एंड हाइट है, सेम उसकी ये हाइट है क्या, इसकी जितनी हाइट है उतनी उसकी हाइट है क्या, उसकी इतनी भी हाइट है क्या, इसकी उतनी है क्या। यहाँ से यहाँ तक अगर फील्ड है तो यहाँ से यहाँ तक है क्या, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। यूज़र जीयूआई बेस्ड टेस्टिंग। ओके, देखो मतलब ये बराबर एक लाइन में होना चाहिए, है क्या नहीं, ये भी बराबर एक लाइन में होना चाहिए, है बराबर एक लाइन। ओके, ठीक है, दिस इज व्हाट सिस्टम टेस्टिंग में ये सब कुछ आता है, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग। और यही ब्राउज़र, यही जो लिंक है वो दूसरे ब्राउज़र में भी ओपन करने के बाद ऐसा कि वैसा ही दिखता है क्या, या फिर थोड़ी कुछ चेंजेस दिखते हैं, ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी इशू। ओके, ये भी चेक करना है, तो सेम लिंक आई एम गोइंग टू यूज़ इन द अदर ब्राउज़र। तो ये सब हमको मैन्युअली करना पड़ रहा है, दिस इज व्हाट मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है क्या यहाँ पे, और कुछ भी आपका उधर नहीं जाना चाहिए, मतलब ये इधर का उधर लोगों ने होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ बराबर होना चाहिए, तो एक ब्राउज़र पर कंपेटिबिलिटी टेस्ट पास हो गई है। ओके, वो ब्राउज़र पे यूज़ हो रहा है, उस पे भी परफेक्ट आउटपुट आ रहा है, जितना जैसा इसमें आ रहा है वैसे शो हो रहा है। ओके, सो ये सब कुछ होने के बाद फिर हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब यहाँ पे हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देते हैं, इनपुट देना चालू कर देते हैं। फिर वो फंक्शनल टेस्टिंग में फंक्शनलिटी बराबर वर्क कर रही कि नहीं,
तो चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम जैसे निगेटिव टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। ओके, निगेटिव टेस्टिंग में डायरेक्टली मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी, फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। ओके, प्रशांत आपको भी वही इशू आ रहा है क्या? कि यहाँ पे देखो फंक्शनल टेस्टिंग चालू कर देते फिर हम। ओके, जैसे हमारे ये कंपेटिबिलिटी यूज़र दूसरे ब्राउज़र पे वर्क हो रहा है कि नहीं, ये चालू हो गया, मतलब चेक कर दिया, तो यहाँ पे हम यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग चालू करते हैं। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब फंक्शनल टेस्टिंग। सो वी आर गोइंग टू चेक वेदर दिस एप्लीकेशन मीन्स फंक्शनलिटी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, बेसिक फंक्शनलिटी हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आना चाहिए टू शो द लिस्ट ऑफ countries. Okay, when you click on that one, so it shows the list of countries. This is what functional testing. Okay, then we select any country, that country will be selected. If you select the particular country, the particular country will be selected. If you select the Cuba, so Cuba will be selected. नहीं तो कभी क्या होता है, यहाँ पे हमने कुछ कनाडा सेलेक्ट किया और यहाँ पे दिखता कुछ अलग। ओके, दिस इज व्हाट बग। So then negative testing. So without entering anything, then you can click here. Okay. So we click on this register button. Okay. So that is not accepted here. Okay. So that means our requirement is that first you have to enter the everything. Okay. Then you can click on the register one. Then ये जो रजिस्टर बटन है देन ये एक्टिव होंगे। अब देखो ये इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव और होगा इनएक्टिव क्योंकि रिक्वायरमेंट वैसी है। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट दिस इज इनएक्टिव। जैसे हम पूरा डेटा फिल करेंगे तो एक्टिव होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा डेटा डालता हूँ और चेक करता हूँ, जो भी मैंडेटरी है वो मैंडेटरी रहना चाहिए। ओके, वाट एवर द मैंडेटरी फील्ड्स, मैंने अभी क्या किया, ओनली मैंडेटरी फील्ड्स डाले हैं। ठीक है, ये निकालता हूँ, मैंडेटरी फील्ड्स डाले हैं मैंने। ठीक है, ओनली मैंडेटरी। एंड नाउ यू कैन चेक हियर रजिस्टर, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्क। ओके, सो दिस इज व्हाट बग। ठीक है, सो जब भी मैंने यहाँ पे रिक्वायर मैंडेटरी फील्ड डाले हैं, ये देखो ये जो मैंडेटरी फील्ड डाले हैं, तो ये आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें बग है ये। ओके, so now let us, I'm going to add something here. Okay, 1 2 3, and you can check here whether it is allowed to click on here, not allowed. Let us refresh that one. Okay, okay, touch lock. Okay, this is captcha is there. Okay, where is the lock? This is lock. Okay, and now yeah, now it is valid. Okay, to do this one. Now so the same thing I want to do once again. Okay, with entering the मैंडेटरी फील्ड। अब देखो कि जो मैंडेटरी फील्ड है, मैंडेटरी फील्ड पे एक्सेप्ट होने के बाद वो एक्सेप्ट होना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड में हमने कुछ भी डालो तो भी वो एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, सो मैंडेटरी फील्ड में हमने यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैंट सिलेक्ट करो, तो हमने पैंट सिलेक्ट किया। ओके, देन रजिस्टर, तो ये रजिस्टर हो जाएगा। ओके, दैट इज एक्सेप्टेड, टेस्ट केस इज पास। फिर यहाँ पे कुछ भी डालो आप। ओके, कुछ भी डालो, नो प्रॉब्लम। सो रजिस्टर, टेस्ट केस इज पास। ओके, so now after that he is asking that username is already registered, this is the bug। okay, username is already registered, so by default what is taken, username value that is taken। ठीक है, this is the bug। okay, and after that he is doing the errors। okay, username must be the this one and this one and this one, here email address does not appear to be valid। okay, this is also the bug। okay, because मैंडेटरी फील्ड्स आर दिस टू। ओके, जब ये दो मैंडेटरी फील्ड है तो फिर एक्सेप्ट करने के बाद सिर्फ ये तीन ही फील्ड मैंडेटरी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री, उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस क्यों बोल रहा है कि वो तो मैंडेटरी नहीं है। दिस इज द बग। ओके, दिस इज निगेटिव टेस्टिंग। ठीक है, तो एच एंड एवरीथिंग वी हैव टू टेस्ट दैट वन। तो फिर यहाँ पे एस्ट्रिक है, तो यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं है तो हम बोलेंगे कि प्लीज प्लेस द एस्ट्रिक हियर। ओके, सो जैसे सॉरी, लेकिन हम आपने जो वर्ड पूरा एक्सप्लेन किया न, तब से 3 4 बार वॉइस ब्रेक हुई आपकी, ओके, फिर भी समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो मैंडेटरी है, अभी हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंडेटरी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम
और कंट्री, दिस इज मैंडेटरी। ओके, क्यों मैंडेटरी है ये? हम कैसे चेक करेंगे कि दिस फील्ड आर मैंडेटरी और नॉट? हाउ वी आर गोइंग टू चेक फर्स्ट? और वो रेड उस पर ही होता यस, है ना। यस, सो दिस एस्ट्रिक इज शोइंग दैट कि ये दिस फील्ड इज मैंडेटरी। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे हमने जो मैंडेटरी वो डाल दिया, यहाँ पे डब्ल्यू क्यू लिखा, मैंने क्यू लिखा, और यहाँ पे कनाडा सिलेक्ट किया, दीज आर द थ्री मैंडेटरी। तो हमारा एक्सपर्ट एनालिटिकल थिंकिंग क्या है हमारे, कि यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए वो। अभी देखो कैमरा बोल रहा है क्लिक द टच ऑन द कैमरा, सो कैमरा पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर पे होना चाहिए, ये हमारा टेस्ट केस है, तो ये फेल हो रहा है, तो दिस इज द बग। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, एरर यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर, दिस इज अ टोटल बग। ठीक है, सो हमने यूजर नेम डाला ही नहीं, है क्या नहीं, यूजर नेम तो हमने डाला ही नहीं, तो इसने क्या लिया कि बाय डिफॉल्ट जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे यूजर नेम नाम का, वो लिया बाय डिफॉल्ट। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यूजर नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 1 to 20 कैरेक्टर, बिकॉज ओके दैट इज ओके, बट इन द ईमेल, सो ईमेल एड्रेस डज नॉट अपेयर द टू बी वैलिड, बिकॉज हमने हमने तो ईमेल एड्रेस डाला ही नहीं, तो ये क्या कंसिडर कर रहा है, प्लेस होल्डर कंसिडर कर रहा है, सो दिस इज द बग। ओके, and here the password, do not use your username as a password। ओके, सो ये जो है वो ऐसे नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम कह रहा एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो यहाँ पे केस टेस्ट केस फेल हो रही है, तो द सजेशन हम क्या देख सकते हैं डेवलपर को यहाँ पे, कि आप यहाँ पे कंपलसरी करो, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंडेटरी करो ये सब चीज़ें। ओके, अगर ये मैंडेटरी नहीं है, ओके, इफ देर इज नॉट मैंडेटरी, सो ये साइन अप होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए यूज़र, अगर ये मैंडेटरी नहीं तो यूज़र नेम, लास्ट नेम और कंट्री से एक्सेस होके यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से चेक करेंगे और उसके हिसाब से चेकिंग देखेंगे फिर। ओके, बट दिस इज द बग, दिस इज व्हाट फंक्शनल टेस्टिंग, देन द टेस्टर विल गो फॉर व्हाट फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, सो ये हमने वर्क किया कैसे, मैन्युअली, राइट। So the any new application must be manually tested before the testing can be automated. Okay, जब तक जैसे अभी हमको बग आ गया, जैसे हम ये मैनुअल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनुअली वर्क करते पहले, उसके बाद हम उसको, और वही सेम, अगर हमको डेटा है वही डेटा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, लेकिन हमको 1000 एम्प्लॉय का डेटा है या पर्सन का डेटा है, वो हमको चेक कर रहे हैं, तो वो डेटा बहुत है सेम, तो फिर हमको ऑटोमेशन टेस्टिंग में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 1000 टाइम डेटा एंटर करके चेक करना पड़ेगा मैन्युअली, तो ये कॉस्ट टाइम ज़्यादा जाता है इसमें, इसलिए ये चीज़ रिव्यू करने के लिए हमको ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। ओके, बट बेसिक वी मस्ट हैव टू वर्क ऑन द मैनुअल टेस्टिंग। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं 10-10 15 साल मैनुअल टेस्टिंग पे वर्क करते हैं, दैट डजंट मैटर। ओके, सो द मैनुअल टेस्टिंग डज नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ एनी टेस्टिंग टूल। Okay, so here that the testing can be automated. Okay, so the manual testing required a more effort. Okay, but it's necessary to take the automation feasibility. So अभी effort तो ज़्यादा लगता है manual testing करने के लिए, क्योंकि हम manually करते हैं ना सब कुछ चीज़ें। So manual testing does not require the knowledge of any testing tool. अब manual testing के लिए कोई भी tool का knowledge की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं पहले बता दिया आपको। Okay, so automation के लिए tool चाहिए। One of the software testing fundamental is 100% automation is not a possible। ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन 100% ऑटोमेशन जो है इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पार्ट हमको मैन्युअली टेस्ट करना ही पड़ता है। तो जैसे कोई भी ये एप्लीकेशन है, उसको ये जो पूरी एप्लीकेशन है, तो 100% जो है वो इस पे अवेलेबल नहीं है। ओके, मतलब ये जो पूरी एप्लीकेशन हम पूरी ऑटोमेशन में वर्क नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ पार्ट हमको मैन्युअली टेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोड मैं ऑटोमेशन मतलब कोड लिख के वो टेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक, तो ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमको मैनुअली मतलब कम से कम 30-40% तो भी वर्क वो मैनुअली होता है। ओके, सो मैक्स मैक्स वर्क मैनुअली, और जो भी डिपेंडेंट है, जो अगर उसमें डेटा ज़्यादा है, सब कुछ डेटा है, और सेम टेस्ट केसेस वही हमको रिपीट करना है बार 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 बार, तो हम ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं, सेम चीज़ें अगर रिपीट करनी है तो। ओके, सो द इसका मतलब है कि 100% ऑटोमेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए मैनुअल टेस्टर की ज़रूरत रहती है।
भलाई कंपनी में ऑटोमेशन टेस्टर यूज कर रहे हैं, विदाउट मैनुअल टेस्टिंग द ऑटोमेशन टेस्टर आर नॉट वर्क। ओके, सो दिस इज द बेस। तो कोई भी कंपनी में वही टीम में मैनुअल टेस्टर कंपलसरी रहेंगे ही। जो डेवलपमेंट टीम चल रही है जहाँ पे टेस्टिंग टीम है, तो ऑटोमेशन टेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट मैनुअल टेस्टिंग, विदाउट ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है, विदाउट मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं, इम्पॉसिबल। So the manual testing, write the test cases, test scenario. Okay, also he's do the work by manual testing. Manually वो flow check करेगा, manually data enter करके देखेगा, manually functional testing work करेगा। ठीक है, 100% ऑटोमेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो कुछ परसेंट ही हम ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं। ओके, सो दिस मेक्स द मैनुअल टेस्टिंग इज इम्पेरेटिव। ओके, दैट इज important. What is the goal of the manual testing? Okay, we provide what? Error free software, right? We provide a quality product. So the manual testing is ensure that the application is the error free and it is working in the conformance to the specified functional requirement. That will be the test suits or cases, okay, are designed during the testing phase, and should have the 100% of the test coverage. तो जैसे हमारा टेस्टिंग प्लान बनता है, टेस्टिंग प्लान्स बनते समय हम पता चल जाता है कि हमको टेस्टिंग कैसे करनी है, इसमें क्या क्या रह सकता है। तो जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम यू वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे एप्लीकेशन नहीं रहेंगे आपके सामने, ओके, ये मत सोचो कि आपको ये पूरी एप्लीकेशन मिल गई ना अभी हमको टेस्ट करना है, ऐसा नहीं रहता है। तो ये बिल्डिंग स्टेज में रहती है, तो उस टाइम पे SRS डॉक्यूमेंट रहता है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, और FRS डॉक्यूमेंट रहता है। तो उसी के हिसाब से टेस्ट सिनारियो और टेस्ट केसेस डिज़ाइन होते हैं। ओके, अब टेस्ट केसेस मतलब क्या है कि जैसे अभी यूज़र नेम है, एंटर द यूज़र नेम, वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड चेक इट इज़ वेरी वेदर इट इज़ रीडायरेक्टेड टू द होम पेज और नॉट। ठीक है, एंटरिंग द वैलिडेट लॉगिन नेम बाय एंटरिंग द वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये होगी टेस्ट केस। तो जैसे हम वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो होम पेज पे जाना चाहिए, हो गया कि होम पेज पे हो। ओके, देन टेस्ट केस इज पास। तो ये जो टेस्ट केसेस है वो लिखते हैं। ठीक है, ये होने के पहले फिर जैसे बिल्ड हमारे पास आता है, ये अभी चालू हो गया वर्किंग करना, तो फिर हमको हमने जो टेस्ट केसेस लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको टेस्ट करते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग तो हम टेस्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज टेस्ट केसेस टू सूट, दैट इज डिजाइन ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। ओके, जो टेस्टिंग फेज रहता है उस टाइम पे हम उसको डिजाइन करते हैं और हम ये सोचते हैं कि दैट इज कवरेज द ऑल दिस टेस्ट केसेस। पूरे एप्लीकेशंस के बारे में जो भी मॉडल पे वर्क कर रहे हैं उसके बारे में सारे टेस्ट केसेस वहाँ पे आने चाहिए। It also makes the sure that the reported defects are fixed by the developer and also retesting has been performed by the tester. ठीक है, to on the fixed defect. So basically this testing checks the quality of the system and delivers the bug free product to the customer. तो जैसे हम टेस्टर ने कुछ डिफेक्ट वगैरह रेस किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, तो डेवलपर को असाइन हो जाएंगे। सो डेवलपर ने उसने फिक्स किए हैं, डेवलपर ने उस डेवलप जो हमने जो टेस्टर ने जो डिफेक्ट इशू किए है, रेस किया है, रिपोर्ट किया है, तो डेवलपर ने उस पर वर्क किया है, तो उसके बाद हमको और एक बार उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। ओके, तो हम चेक करते हैं कि डेवलपर फिक्स द defect or not. Okay, we check that the defect is fixed by the developer or not. Whether the defect is fixed or not, that is what retesting. Okay, so basically this testing checks the quality of the system. Okay, so that is what delivering to the a good product to the customer. So what is the goal of this manual testing? We are going to check the error free system। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसी में टाइम पे कि वाई शुड आई हायर यू, वैसे भी मतलब हम क्वालिटी, आई विल वर्क एज अ मैन टेस्टर, सो आई कैन गिव द 100% एफर्ट टू द फॉर टेस्टिंग एंड आई विल टेस्ट द एप्लीकेशन लाइक अ एंड यूजर एंड यू विल गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपको इफ यू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट, सो यू विल गेट द गुड बिजनेस, also you will get a good business। so ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, सो हम क्वालिटी प्रोडक्ट 100% देने की कवरेज करेंगे। कैसे? बाय टेस्टिंग द application as per the required, as per the requirements। okay,
सो ये एम रहता है कि हमको 100% एरर मतलब एरर फ्री application दो. Okay, so the manual testing is involved for writing the scenario, test cases, execution the test scenario, also defeating the bugs, defect, also reporting the defects. Okay, and we can check also the whether the reported defects are fixed by the developer or not. So that person we are going to do here the retesting. Okay, and the main goal of the manual testing that we gives the what bug free product to the customer. Okay, then we can deliver the bug free product to the customer. Okay, so we perform that manually everything. So this is the goal of the manual testing. Okay, so the goal of manual testing में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको. ओके, ये इंटरव्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज द गोल ऑफ मैनुअल टेस्टिंग वगैरह. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग, सो दैट वी परफॉर्म द मैन्युअली. ओके, वी परफॉर्म द मैन्युअली. टेस्टिंग का गोल यही रहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट देना. ओके, फिर वो मैनुअल टेस्टिंग रहो ऑटोमेशन टेस्टिंग. ऑटोमेशन का टेस्टिंग का गोल रहेगा कि मल्टीपल टेस्ट केसेस एट ए टाइम रन करना. ओके, ऑटोमेट करना उस चीज़ को, दैट इज टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स. तो उसमें टाइम बचता है, बराबर है क्या नहीं. सो बट दे राइट द code written is required, code writing required. Okay, so the next class we are going to see the what are the manual testing types. तो manual testing के क्या क्या types होते हैं, क्या क्या techniques है. Okay, and now onwards these are the very very important classes. Okay, as a part of the interviews. तो as a part of the interview these are from the very very important class. Okay, सो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो जैसे वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, एक्सेट्रा, ये हम आगे देखेंगे धीरे धीरे और आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी. ओके, कुछ क्वेश्चंस है. हाँ, वो आपने क्यूए एंड टेस्टिंग बताया था ना, वो एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे क्या, मतलब टेस्ट प्लान एंड बिल्ड हाँ कैसे होता हाँ. है, उसके बाद में टेस्ट प्लान, टेस्ट लीड वगैरह जो आपने बताया था, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो. ओके, ये जो डेवलपमेंट का मैटर है, ठीक है, जैसे हमारे पास अभी बिल्ड आ गया, अभी जैसे ये वर्क चालू है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना चालू हो जाते हैं इनका भी, और जैसे बिल्ड मतलब ओके, सो बिल्ड मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन का कोड. जैसे मान, एप्लीकेशन कोड. हाँ अभी मान लीजिए, हाँ इंटीग्रेटेड कोड बोल सकते हैं उसको, कि उसमें पूरा कोड मर्ज है. बिल्ड मतलब देखो, हम उसको बिल्ड ही वर्ड यूज करते हैं, बिल्ड. मतलब ये डॉक्यूमेंट होता है क्या नहीं कोई, नहीं नहीं, इट्स अ कोड. कोड मतलब हाँ. डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा ना, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये कोड होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. वो पहले छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको ऐसे घुमाते हैं फिर इंटरव्यूअर. बिल्ड मतलब होता है कि कोड. ठीक है, जैसे ये एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन है. अब ये एप्लीकेशन का कोड लिखा होगा ना कहीं पे, तो भी डाला होगा. ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आपको कोड दिखाता हूँ. चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं आपको, डोंट वरी. अब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, क्या बोलते, कौन सी एप्लीकेशन है ये, वोटिंग सिस्टम बनाई है सपोज, तो हम उसको बिल्ड करेंगे. मैं आपको दिखाता हूँ कोड. तो जो बिल्ड होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, कोडिंग जो होती है ना, तो वो एट ए टाइम पूरी की पूरी नहीं होती है. वो कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है. जैसे आज डेवलपर ने वर्क किया तो आज उसने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा होगा, फिर दूसरे दिन भी वर्क किया, तीसरे दिन वर्क किया, ऐसा कुछ 2-3 साल का ड्यूरेशन होता है ये सब चीज़ें में, प्रोजेक्ट में. तो तो आज डेवलपर ने वर्क किया, उसने एक पेज का कोड लिखा, और दूसरे डेवलपर ने भी कोड लिखा, फिर उसको मर्ज किया 4-5 पेजेस को. तो उस मर्ज करने के बाद जो उसको बोलेंगे, उसको हम बिल्ड बोलेंगे. अब उसी को बिल्ड बिल्ड मतलब उसमें वर्जन रहता है, फिर इस वर्जन में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा और लॉगिन ही फॉर्म रहेगा सिर्फ.
एक मॉड्यूल में सिर्फ, मतलब आज के डेट में ये जो यूजर स्टोरी थी तो इतना ही रहेगा। फिर उसको हम बिल्ड को टेस्ट करेंगे। जैसे वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी होगा या साइन अप पे बटन होंगे, तो साइन लिंक होंगी, साइन अप पे क्लिक करके बाद देखेंगे कि साइन अप फॉर्म ओपन हो रहा है कि नहीं, बस इतना ही। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग या स्मोक टेस्टिंग। ओके। तो इस बिल्ड में जैसे अगर वो बिल्ड को हमने बोला कि जैसे वहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं ओपन हो रहा, तो बिल्ड फेल हो गया। ओके। अभी तक हमने फंक्शनल टेस्टिंग किया ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि जो डेवलपर ने उसको कोड को इंटीग्रेट कर दिया वो हो गया डेवलपर टाइम का इंटीग्रेशन। अब हम हमारे हिसाब से इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो लिंक पे क्लिक होने के बाद लिंक ओपन हो रही कि नहीं। जैसे मैं फेसबुक पे जाता हूँ। ओके। देखो फॉरगेट ऑन पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड पे गया कि नहीं। ठीक है, ये होगी बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। हमारे पास इतना ही बिल्ड है फिलहाल के लिए, ये बिल्ड आ गया हमारे पास, मतलब वो कोड है और उसमें सिर्फ ये फ्रंट पेज ओपन हो गया। ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि जैसे क्रिएट अ पेज, वहाँ पे क्लिक होने के बाद क्रिएट पेज पे जा रहा है कि नहीं। ठीक है। ये हो गई इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, बेसिक टेस्टिंग। तो अब ये जो कोड है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पे जा रहा है, तो इसके लिए किसने किया, ये डेवलपर ने किया। ठीक है। अब डेवलपर ने भी ये चेक किया कि ये दोनों, क्योंकि अब मान लो कि ये जो कोड है एक डेवलपर ने लिखा है, यहाँ से ये बटन का कोड एक ने लिखा और इसका कोड जो है वो दूसरे ने लिखा, इस पे जो कोड है बटन का वो दूसरे डेवलपर ने लिखा। तो इस सारा जो कोड आया आज, ये कोड दो तीन, इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, मर्ज किया। ठीक है। इसको हमने दिया बिल्ड वन नाम, आज के लिए बिल्ड वन। ये आ गया वर्जन वन, बिल्ड वन। ठीक है। ये कोड आया हमारे पास बिल्ड, और बिल्ड को हमने हमारे लोकल सिस्टम में डिप्लॉय किया। अब डिप्लॉय के लिए प्रोसेस रहती है। ओके, मतलब सॉरी, इसको हम डिप्लॉय नहीं कहेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट सेटअप कहेंगे। ये देखो, एनवायरनमेंट सेटअप के लिए मैंने एक आईडी यूज़ की, तो ये इक्लिप्स रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो जावा में है तो जावा का जेडीके हमारे पास इंस्टॉल चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास ये बिल्ड आ गया है जिसने डेवलपर ने ये कोड लिखे, एक डेवलपर ने ये पेज बनाया, दूसरे डेवलपर ने का पेज बनाया। ओके। तो जो टेस्टर है, सॉरी डेवलपर है, उन्होंने उनको इंटीग्रेट किया और एक बिल्ड बना दिया। तो एक बिल्ड बनने के बाद ये बन गया एक फोल्डर, बुक स्टोर। ठीक है। बिग स्टोर नाम का एक फोल्डर बन गया और उसके अंदर कोड है जो सपोर्टिंग फाइल से सारे। ठीक है ना, ये देखो इसमें फिर कोड है, लाइब्रेरीज है, ये कोड है। फिर इसके अंदर वेब पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज कोड है। तो ये बन गया बिल्ड। ओके। तो ये आज का बिल्ड है और आज के बिल्ड में सिर्फ मान लीजिए कि 2 पेजेस हैं, सिर्फ 2 पेजेस, जैसे ये एडमिन डॉट जेएसपी और बुक्स डॉट जेएसपी। तो हमारा या फिर यहाँ पे हम चेक करते इंडेक्स होगा, यहाँ पे इंडेक्स मतलब होम पेज, इंडेक्स है क्या यहाँ पे। कॉन्फ़िगरेशन, ओके, वेब डॉट एक्सएमएल में हो। ठीक है। तो ये हमारे पास सही पेज आ गया है, मतलब 2-3 इंच यहाँ पे कोड रहेगा। ठीक है, 2-3 इंच फाइल के कोड रहेंगे। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करके हम थोड़ी नहीं देखते बैठेंगे डेवलपर ने बराबर कोड लिखा कि नहीं, मतलब यहाँ पे क्लिक होने के बाद उधर जा रहा है कि नहीं, एडमिन पे क्लिक होने के बाद यूजर पे जा रहा है कि नहीं, और बुक्स डॉट जेएसपी पे जाना है कि नहीं, ये थोड़ी ना हम देखेंगे। हम सिर्फ लिंक चेक करते हैं। अब यहाँ पे आ गया पहला बिल्ड, हम उसको रन करेंगे, हो गया हमारा बिल्ड आ गया और हमारे सिस्टम में उसको सेटअप किया। ये इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल सेटअप। ठीक है। जैसे टेस्ट प्लान लिख दिया, फिर हम टेस्ट सिनारियो लिख दिया, टेस्ट केसेस लिख दिया, फिर हमारे लोकल मशीन में उसको इंस्टॉल किया। ठीक है, छोटा सा पार्ट आ गया, इंस्टॉल कर दिया हमने, और अभी हम उस पर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। तो जैसे हमारा ब्राउज़र ओपन होता है तो चेक करेंगे कि प्रॉपर ओपन हो रहा है कि नहीं। वही हम link जो डाल कर उस पे ओपन ओपन हो रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की।
ओके, उसको बोल देंगे स्मोक टेस्टिंग, बिल्ड वेरिफिकेशन। अभी हमने जो बिल्ड आया है, हम बिल्ड में वेरीफाई करेंगे थोड़ी देर में। तो बिल्ड वेरिफिकेशन का मतलब है कि वहाँ पे पूरे लिंक्स जो है, छोटे छोटे लिंक्स, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन क्लिक हो ही नहीं रहा, या फिर जैसे ब्राउज़र जो जो बिल्ड आ गया और ब्राउज़र ओपन हो जाता है और फट से क्रैश हो जाता है। अब देखो मेरी सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो गई, देखो ब्राउज़र चालू हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके, ये देखो ब्राउज़र चालू हो गया। ब्राउज़र चालू होने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारा होम पेज दिखना चाहिए। दिख गया होम पेज। ओके, मतलब होम पेज आ गया तो हम बोलेंगे कि स्मोक टेस्टिंग हो चुकी है। अब देखो ये ऑटोमेटिक स्लाइडर भी स्लाइड हो रहा है। ठीक है, स्लाइड हो रहा है ऑटोमेटिक। और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जैसे मैं एडमिन पे क्लिक करूँ तो एडमिन पे एडमिन डॉट जेएसपी पे गया कि नहीं गया। हो गया। इसको बोलते हैं बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। अब मैं इसका कोड दिखाऊँ, ये देखो एडमिन डॉट जेएसपी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, एडमिन डॉट जेएसपी बराबर है ये फाइल पे गए ना अभी। तो ये जो हाँ। कोड है, इसका जो आउटपुट है, जो ये है, कहाँ गया रे बाबा, कौन से इस पे लॉन्च हो गया है? अच्छा, ये एज पे लॉन्च हो गया। ये देखो इसका एडमिन पे क्लिक करने के बाद ये देखो एडमिन डॉट जेएसपी, ये उसका यूआई है एडमिन का। ठीक है, तो एडमिन पेज होने के फिर क्लिक करने के बाद एडमिन का पेज ओपन हो गया। क्या हो गया? मतलब ये जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की है, ये टेस्टर ने की है विदाउट नॉलेज ऑफ कोड। ठीक है, अब ये इसके पहले डेवलपर चेक करेगा कि जो उसका होम पेज है, ओके, होम पेज कहाँ है, होम डॉट जेएसपी, फाइंड आउट दैट पेज। ओके, इंडेक्स पेज। ओके, इंडेक्स मतलब होम पेज। इंडेक्स पेज पे वो चेक करेगा कि जो एडमिन पेज है उसकी लिंक प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है कि नहीं उसके साथ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइंड एडमिन। ओके, एडमिन डॉट जेएसपी, सो यू कैन फाइंड हियर। ओके, देखो, हेलो, सी हियर हाँ। एडमिन डॉट जेएसपी। ठीक है, hyperlink, that's why I'm asking telling to you to go for to do something HTML CSS JavaScript training। ओके, तो UI बेस्ड है। तो अब देखो यहाँ पे देखो लिंक href। ओके, हाइपर लिंक एडमिन डॉट जेएसपी, द टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले एडमिन। तो यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए, ये कॉल होना चाहिए एडमिन डॉट जेएसपी। ये एडमिन कौन, पर। ये कौन करेगा, डेवलपर। ये कौन करेगा, डेवलपर। सो दोनों भी एक कोड आ गया है, उसको मर्ज कर दिया सब भी सभी। ठीक है, क्योंकि हर डेवलपर अलग अलग कोड लिखेंगे ना, उसको मर्ज कर दिया तो सब हुआ कि नहीं, ये डेवलपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे वर्क होता है। और इधर हम चेक करेंगे, फिर हमको पता चल गया कि ये जो बिल्ड है वर्क नहीं कर रहा है, मतलब एडमिन पे क्लिक करने का एडमिन नहीं ओपन हो रहा है, यूज़र पे क्लिक करने का यूज़र ओपन नहीं हो रहा, तो हम टेस्ट करने के पहले उसको फेल कर देंगे, ये बिल्ड फेल हो गया। ठीक है, रिपोर्ट कर देंगे इसको हम, क्या कि हमारा ये जो बिल्ड है, ये जैसे होम पे क्लिक होने उस पे अबाउट अस पे क्लिक होने के बाद अबाउट अस पे नहीं जा रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक होने के बाद उस पे नहीं जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये बिल्ड फेल हो गया। फिर उनको दूसरा बिल्ड आएगा और उसको हम इंस्टॉल करेंगे और उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे पूरी। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग करेंगे, ये वाली स्मोक टेस्टिंग होने के बाद और ये भी टेस्ट करेंगे हम सभी ब्राउजर पे वर्क हो रहा है कि नहीं। ये मैंने क्रोम पे बनाया, अभी मैं सॉरी ये एज पे था, अभी मैं इसको क्रोम पे डाल रहा हूँ ये। ठीक है, ये देखो मैंने क्रोम पे डाल दिया। अब क्रोम ब्राउज़र में भी ओपन हो गया क्या, हाँ। तो और इसमें देखो कुछ नहीं, सब ठीक है, ओके। तो अगर उसमें कुछ यूआई चेंज हो गया तो और रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी बिल्ड रेडी है, तो हम आगे की टेस्टिंग कर सकते हैं अभी। जब तक ये सारे लिंक्स प्रॉपरली वर्क कर रही कि नहीं हो, अगर वो, अगर आप मान लीजिए कि इसमें जैसे ये यूज़र पर क्लिक होने के बाद यूज़र हो ही नहीं रहा और आप इधर क्या कर रहे हैं कि इधर फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, जब तक बिल्ड एक्सेप्ट नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है बिल्ड, तब तक हम टेस्टिंग नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेबल होने के बाद ही वर्क करता है, बिल्ड स्टेबल होने के बाद ही। तो बिल्ड मतलब ये हमारा सारा कोड, इसको हम बिल्ड है बिल्ड। ओके, दिस इज व्हाट कोड। ये हमारे पास ये इतना कोड आ जाता है। फिर ये कैसे एट ए टाइम नहीं आता है, हाँ। अब मानो कि पूरा डेवलप होने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आती टेस्ट होने के लिए, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मैंने आपको बताया, आज एक मॉड्यूल बना, दूसरा एक मॉड्यूल
आज जितना डेवलपर ने वर्क किया, जो डिज़ाइन हो गई है, उसके अपन टेस्ट करेंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो टेस्ट केसेस और बिल्ड ये डिफरेंट ये है क्या? या टेस्ट केसेस डिफरेंट होती हैं और यस, बिल्ड्स जो आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हाँ, डिफरेंट होते हैं। यस, बिल्ड्स इज द कोड वेयर यू हैव टू हम्म टेस्ट। हम्म हमको बिल्ड को टेस्ट करना है, ओके। मतलब वो और टेस्ट है। जो ये बिल्ड है, देखो ये जो एक कोड है, ये बिल्ड है, हम्म, ये बिल्ड आया हमारे और पास। हम्म। टेस्ट केसेस में क्या होता है फिर? टेस्ट केसेस में इसमें इस बिल्ड में जो पहला पेज है एडमिन का, तो हाँ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, मतलब उसको टेस्ट कैसे करेंगे। आप सोचो, अभी यहाँ पे क्या है, दो फील्ड है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सोचने का टाइम देता हूँ। एडमिन पे क्लिक किया, अब मुझे बताओ कि इसको टेस्ट करना है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे ये वाला पेज को। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और पहले इनकरेक्ट हाँ, तो या पहले फिर कभी भी जो करेक्ट है ना, निगेटिव टेस्टिंग से वर्क नहीं करने का, पॉजिटिव टेस्टिंग से वर्क करने पॉजिटिव। का। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो हमको क्या, एनालिटिकल थिंकिंग हमारी क्या रहेंगी कि क्या होना चाहिए। लॉगिन होना चाहिए। हाँ, तो ये कौन सा पैनल करेक्ट। है। हाँ, एडमिन पैनल है। तो जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं एडमिन एडमिन, तो हमारे एनालिटिकल थिंकिंग क्या बोलती है कि लॉगिन पे क्लिक होने के बाद होम पेज ओपन होना चाहिए, एडमिन का डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। हम्म, वही चीज़ को हमने एक लाइन में लिखा, ठीक है, इसको बोलते टेस्ट केस। समझ में आ गया, यही चीज़ को हमने एक लाइन में लिखा, क्या लिखा, टू वैलिडेट द एडमिन लॉगिन बाय एंटरिंग द करेक्ट वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। मग उसके बाद आते हैं उसके स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, टू ओपन द ब्राउजर, go to the login, okay, enter the username admin in the username, enter the password admin in the password field and click on the login page. Then we will get here what, success, and the home page, admin home page is view, okay, we log into the admin home page, so हम क्या बोलेंगे, टेस्ट केस क्या हो गई, पास। ये होगी पहली टेस्ट केस, एंड टू वैलिडेट द लॉगिन एडमिन लॉगिन विथ वैलिड क्रीडेंशियल, ओके, ये हो गए टेस्ट केस। अब देखो कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ये होगी एक टेस्ट केस। दूसरी टेस्ट केस क्या करेंगे हम, इनवैलिड। नेगेटिव हाँ। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पहले डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तो ये एक भी पॉसिबिलिटी आ गई। उसके बाद हम ये डालेंगे, ये नहीं डालेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये नहीं डालेंगे और ये डालेंगे और टेस्ट करेंगे, है। ऐसे वेरियस पॉसिबिलिटीज हो गई, उसको बोलते हैं टेस्ट सिनारियो, ठीक है। तो टेस्ट सिनारियो मतलब क्या कि व्हाट टू टेस्ट। टेस्ट सिनारियो मतलब होता है व्हाट टू टेस्ट, एंड टेस्ट केसेस मतलब होता है कि हाउ टू टेस्ट। ओके। तो ये जो टेस्ट केसेस हैं ये हम मतलब लिखते लिखते हैं हैं, क्या? यस, टेस्ट हमें सिनारियो। सिर्फ बिल्ड हमें सिर्फ बिल्ड आता है और टेस्ट केसेस हमें मतलब प्रेजेंट करना होता बिल्ड आने के पहले जैसे डेवलपर वर्क करते हैं, डेवलपमेंट उनके डॉक्यूमेंटेशन चालू हो जाते हैं, है। टेस्टिंग करने के पहले हमको डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, हमको टेस्टिंग क्या करना है। अच्छा। हम बिना देखे, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे GUI, हम्म, पूरा बिना देख के करना है, ठीक अच्छा। है। बिना देख के टेस्ट केसेस लिखना है हमको। कौन से बेस से, डॉक्यूमेंट के बेस से, तो मैंने दिखा ना FRS SRS, हाँ 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 हाँ। उसके बेस पे। क्योंकि वहाँ पे फ्लो है ना, लिख के है ना कि यूजर नेम आएगा, और वहाँ पे ये थोड़ी लिख के रहेगा कि इसकी विड्थ इतनी रहेंगी, उसकी हाइट इतनी रहेंगी, है क्या, नहीं, वो नॉन फंक्शनल हो गया। लेकिन ये रहेगा कि ये इतना कैरेक्टर वैलिड लेना चाहिए, इतना कैरेक्टर नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ रहेगा ना, उसके हिसाब से टेस्ट सिनारियो बनेंगे। उसके बाद टेस्ट केसेस बनेंगे। अब इसका जो टेस्ट सिनारियो, मैं इसका टेस्ट सिनारियो क्या है सीधा लिखता हूँ, टू वैलिडेट द फंक्शनलिटी ऑफ एडमिन लॉगिन, ठीक है। टेस्ट सिनारियो, अब देखो इस प्रोजेक्ट का टेस्ट सिनारियो बता रहा हूँ मैं एक, टू वैलिडेट द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन पेज एडमिन लॉगिन, ये हो गया एक टेस्ट सिनारियो,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा और एक सिनारियो आ गया, टू वैलिडेट द फंक्शनलिटी ऑफ यूजर लॉगिन, ये हो गया दूसरा टेस्ट सिनारियो। ओके, ऐसे हम टेस्ट सिनारियो लिखेंगे। अब टेस्ट सिनारियो को रहेंगे टेस्ट केसेस। अब ये जो सिनारियो है, टू वैलिडेट द एडमिन लॉगिन, टू टू वैलिडेट और फंक्शनलिटी ऑफ द लॉगिन एडमिन लॉगिन, तो यहाँ पे हम टेस्ट सिनारियो टेस्ट केसेस लिखेंगे 10। ओके, 10-15 टेस्ट केसेस लिख लेंगे हम, क्योंकि हम जीयूआई भी कवर करेंगे यहाँ पे, मतलब लोगो दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे ब्रेड कम आया है कि नहीं, मतलब ये एडमिन लॉगिन दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो बहुत सारे, और यहाँ पे ऐसा वो बॉक्स भी दिख रहा है कि नहीं, बटन जो है वो ब्लैक है कि नहीं, है ना, लॉगिन बराबर दिख रहा है कि नहीं, उसके साइज वगैरह बराबर है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे 15 से 25 हम टेस्ट केस बना लेंगे इसके ऊपर। अब ये जो टेस्ट केस है, ये पहले बनाना है। ओके। ये देख के नहीं बनाना है, लेकिन आपको इंटरव्यू में आपको ये पूछेंगे कि एक लॉगिन पेज है, उसके टेस्ट केसेस बताओ, ऐसे पूछेंगे आपको इंटरव्यू में। चलो, कंसिडर वी हैव द टू लॉगिन फील्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड बटन इज आल्सो देयर, सो नाउ टेल मी द व्हाट विल बी द सिनेरियो, नाउ टेल मी द व्हाट आर द टेस्ट केसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 100% वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो क्लियर हो गया इसमें? हाँ बिल्ड समझ में आ गया? हाँ, समझ में। तो ये पूरा बिल्ड है, क्योंकि ये मेरा पूरा पूरा प्रोजेक्ट है। हम्म। अब इसमें आपको सिर्फ एडमिन ही मिलेगा, तो यूज़र और ये इनएक्टिव रहेंगे फिलहाल। तो हम बोलेंगे कि सिर्फ इतना ही बिल्ड है, ये हो गया वर्जन वर्जन 1 पे, फिर वर्जन 2 आ गया, कुछ फंक्शनलिटी ऐड हो गई, फिर वर्जन 3 आ गया, ऐसे वर्जन आते रहेंगे। अब ये मेरा कंप्लीट बिल्ड है, ये कंप्लीट बिल्ड है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि एप्लीकेशन हो गई, मतलब ये सॉफ्टवेयर बन गया अब मेरा, वेब एप्लीकेशन कंप्लीट बिल्ड। तो ये जो FRS डॉक्यूमेंट्स मतलब हमें मिलता है, ये कौन टेस्ट लीड प्रोवाइड करता है क्या हमें? सब डॉक्यूमेंटेशन हमारे एक सर्वर रिपोजिटरी रहती है, उसमें रहते ओके, हैं तो एक। हमें वहां से डाउनलोड करना पड़ता है, हाँ, चेक वहाँ करना से हमको चेक करना है, एक हमारे वर्क रिपोजिटरी। अब आप वर्क कर रहे हो ना, तो आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो रहा है क्या कुछ कंपनी में? हाँ। तो जैसे नहीं, आप, अभी तो नहीं, एक्सेस है नहीं अभी, हम्म, क्योंकि मैं 1.5 साल से छुट्टी पे हूँ ना। हम्म, इसलिए। तो आप वहाँ से आपके सर्वर में डॉक्यूमेंट तो रहते होंगे ना कुछ वहाँ पे हाँ हाँ ठीक हाँ, है, वैसे चाहिए वो। फोल्डर रहता है। बस बस बस, सेम वो फोल्डर रहता है कंपनी का, वहाँ पे कंपनी का सब। यस, फोल्डर। करेक्ट, वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट रहते हैं, अच्छा। और उसके पहले आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो हमें डायरेक्टली वहां से चेक कर हाँ, सकते हैं, एक्सेस बिल्कुल। देते होंगे तो चेक कर हाँ, तो सकते हमारा लॉगिन रहता ना वो, तो वहाँ पे कोई बोलता नहीं कि वहाँ पे जाओ और चेक करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हाँ, खुद को ही करना पड़ता है। हैं। हाँ, वो बात सही है। और जो अपने बड़ी रहते हैं, बड़ी, ठीक है, हाँ। हमारा बड़ी के साथ डिस्कशन रहता है, वो हम्म। बताते रहेंगे, हमारा जो बड़ी रहेगा ना, फ्रेंड हमारा, तो हम्म। वही हमको बताएंगे सब कुछ। ठीक है, ओके। तो यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू में यही आपको क्वेश्चन मिलता है कि आपको बिल्ड कैसे मिलता था। हाँ, हम्म। आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पे रहते हैं, है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो हम बोलने का सर्वर रिपोजिटरी में रहता है, हमारे सर्वर में। हम्म। और हमारा जो जिस पे हम काम करते हैं वर्क प्लेस है, लोकल रिपोजिटरी। और ये जो है वो गिट हब से है, गिट गिट। ओके, जीट बोलते हैं उसको, गिट बोलते हैं। गिट हब एंड बिट बकेट, बिट बकेट, गिट हब। ओके, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं डेवलपर यहाँ पे। आज मैंने कोड लिखा और यहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं गिटहब पे, फिर हम उसको डाउनलोड करते बिल्ड, फिर हम हमारे लोकल में सेट करते, फिर हम टेस्ट करते, रिपोर्ट हम भेज देते। ठीक है, फिर और 14 दिन के बाद नया बिल्ड आ गया, और ये गिटहब पे डाल देंगे, फिर और हम उसे डाउनलोड करेंगे और हम चेक करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्ड का वर्जन और नया भेजो। ठीक है, वैसे ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। अब ये जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके एच प्रोसेस कौन सी है। ठीक है, ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है आपकी, ये वर्क कैसे फ्लो होता है। ओके। हर एक प्रोजेक्ट का SDLC जो होता है वो डिफरेंट होता है, राइट? हाँ, डिफरेंट होता है, तो वो कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होता है। प्रोजेक्ट जो है, एक ही प्रोजेक्ट हम वेरियस एच यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, ओके। जैसे किसी के पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये बनाना है, तो उसने हो सकता है कि वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया होगा।
ठीक है। और कोई जो कंपनी दूसरी है वो अजाइल अजाइल यूज़ कर रहे होंगे। अब जो बड़े बड़े कंपनी रहती है ना वो अजाइल यूज़ करती है सीधा बोले तो, जहाँ पे बजट ज़्यादा रहता है। ओके। और जो वाटरफॉल जो है जहाँ पे बजट कम रह सकता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती ना, क्योंकि वो फिक्स हो जाती है। और अजाइल में कैसा होता है कि आज अलग रिक्वायरमेंट है, कल अलग बोलेंगे नहीं मुझे ये लगा दो वहाँ पे, मुझे वो चाहिए वहाँ पे। रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो एक बार रिक्वायरमेंट जैसे अभी बिल्ड आ गया, इतना बड़ा बिल्ड होने के बाद अब बोलेगा कस्टमर यहाँ पे एक मॉड्यूल डालो, एडमिन यूज़र है तो यहाँ पे एक काम करो, एजेंट लॉगिन डालो, उसमें ऐसा ऐसा करो, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो यहाँ पे मैंने डिप्लॉय कर दिया है वो तो गया काम से। ठीक है। जो पुराना बिल्ड है उस पे मुझे वर्क करके और यही बिल्ड पे वर्क करके और दोबारा मुझे पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वाटरफॉल अगर यूज़ करेंगे तो और एनालिसिस करो और डिज़ाइनिंग करो और टेस्टिंग करो और भेजो, तो उसमें बहुत टाइम जाता है ना मेरा वाटरफॉल में। तो इसीलिए कैसा कि अजाइल यूज़ करते हैं, कोई कोई कंपनी वी मॉडल भी यूज़ करते हैं। इधर डेवलप होते रहता है, इधर टेस्ट होते रहता है। वी मॉडल, डेल बिल्ड टेस्ट, ओके, डेवलप टेस्ट, डेवलप टेस्ट, डेवलप टेस्ट, ऐसे भी चलता है। ठीक है। इधर फिर प्रोजेक्ट मिलता है। तो अजाइल तो सबसे बेस्ट है, ये स्प्रिंट है अजाइल। अजाइल में कोई टेंशन नहीं, अगर आपने वर्ड नाम तो सुने ही होंगे। यहाँ पे कैसा कि आज आपको होम पेज बनाना है, चलो चलो डेवलपर आओ, होम पेज बनाओ, भेज दो। ठीक है। तो 14 दिन का स्प्रिंट होता है, तो कस्टमर को पता चलता है कि मुझे आज होम पेज मिलने वाला है, तो होम पेज देख के खुश हो जाता है। उसके बाद दूसरे 14 दिन में एडमिन पेज बनाना है, चलो चलो और वर्क करो उसमें, मतलब बिल्ड करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, बिल्ड करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, देन उसको रिलीज करो। फिर कस्टमर खुश खुश हो जाता है, यहाँ पे एडमिन भी आ गया। तो अब बोलेगा अरे नहीं मुझे होम पेज में थोड़ा और एडिशनल फीचर वर्क करना है, और आ गया। हाँ, तो और फिर वो होम पेज पे जाएगा और कुछ यूजर स्टोरी उसमें ऐड करेगा और रेडी हो जाएगा। तो हियर द रिक्वायरमेंट गेट एक्सेप्टेड। यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एनी टाइम, बिकॉज हम स्प्रिंट फॉलो कर रहे हैं, मतलब अजाइल मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए हम कैसे कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेते हैं, बिल्ड बनाते, भेज देते। ठीक है। 14-14 दिन का हमारा ड्यूरेशन चलता है, तो स्प्रिंट प्लानिंग बोलते हैं उसको, अजाइल मेथोडोलॉजी। तो एसडीएलसी प्रोसेस डिफरेंट रहता है। हमको सिर्फ वाटरफॉल या अजाइल ही रखना है, तो सिंपली बोलना कि हम अजाइल ही फॉलो करते थे बस। और यही चलता है आजकल, मैक्सिमम अजाइल फॉलो। मैं आपको बताऊंगा कि तो आपको समझ में आ जाएगा कि अजाइल क्यों नहीं यूज़ करते, और अजाइल क्यों यूज़ करते और वाटरफॉल क्यों नहीं यूज़ करते। और कोई